Good afternoon, everyone. Those who have come here and those who are attending online. I welcome everyone for this session GST Pathshala workshop. Today we have with us expert person from who has worked for so many years with Central Excise and now after that with GST. And Mr. Anand Natarajan sir is there to guide us. And the topic for today is audits and how to tackle audits and how should we prepare for audits. So he'll tell us like what is audit, what is the process, how things happen, what questions would we get from the auditor, how do we give our replies, how should be our body language, and all such things he will explain to us in details about GST audit. So I welcome Natarajan sir, and I would like to ask you to please present. Thank you, sir. Thank you and good afternoon, friends. On behalf of the Indian Merchant Chambers, I welcome each one of you. After a successful, that's the feedback that we have received after the successful 3 series of Pathshalas that we have conducted. Today we move on to the 4th in the line, where I'll be dwelling mainly upon the audit procedures conducted by the department on the records of the taxpayer. I also have with me, of course, I'll not be able to point him out to you, my ex-colleague, retired Assistant Commissioner Shri Anand Raoji, who is in attendance. Welcome, sir. Thank you. So basically, what is the meaning of audit? As a layman, aam aadmi ke liye, he or she assumes that audit is done on any record to ensure that everything is fine, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. हिंदी में बोले तो लिखा पढ़ी की जांच, उसी को ऑडिट समझते हैं. But as you know, GST, definitely the parlance or meaning of audit will definitely have its own scope and this one meaning. So audit under GST, whether be it under central GST or the state GST or the union territory GST. See, why I'm saying all the axes? Because as a taxpayer, you may be assigned to only one unit. Either you will be assigned to the state if you are in a state or to the center. Or if you are in a union territory, you could be assigned to the union territory or the central. That's it. So, audit under GST is the departmental process of examination of records, returns, and other documents or other records maintained by the taxable person, okay, by a registered person. But that is for a specific purpose. The purpose is to ensure that जो turnover आप दिखा रहे हैं वो सही है क्या, vis-a-vis GST. Your turnover, as you know, in your books of account may be different because of various reasons. Income book कब होता है, क्या होता है, लेकिन GST vis-a-vis क्या आप turnover सही बता रहे हैं, ये वो ऑडिट टीम और ऑडिटर देखता है. दूसरा, जो रेट ऑफ टैक्स भर रहे हैं या जो आप क्लासिफिकेशन है HSN कोड गुड्स का और सर्विस एक्सेस कोड जो सर्विसेज का आप दे रहे हैं वो सही है कि नहीं. सी, ये इंपॉर्टेंट है HSN और SSC इसीलिए क्योंकि अपने भारत में बहुत सारे रेट्स हैं. सो देयर इज बाउंड टू बी सम डिफरेंसेस, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, इसीलिए वो भी चेक करते हैं ऑडिटर. तीसरा जो मेन है, जो सेट ऑफ आप लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सही लिया है कि नहीं, एडमिसिबल एलिजिबल है कि नहीं, वो देखना उनका काम है. दूसरा, जो RCM, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में थोड़े बहुत टैक्सेस आपको भरने हैं वो सही से भर रहे हैं और उसका बराबर क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं. जो एक्सपोर्ट करते हैं क्या वो सही में हो रहा है, LUT में हो रहा है या टैक्स भर के हो रहा है, वो भी चेक करते हैं. और अगर यदि रिफंड मिला है तो रिफंड क्या सही है कि नहीं. सी, ये एक ही सेक्शन है ऑडिट सेक्शन जो रिफंड को भी चेक कर सकती है.
एक्टिवेशन वगैरह जो विजिलेंस वाला आते हैं वो ये नहीं देखते हैं क्योंकि इट इज पास बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर, लेकिन ये इनका ड्यूटी है. फाइनली ऑडिट auditor or audit team has to see whether the taxpayer is compliant, GST compliant. क्या वो रिटर्न्स सही में टाइम में भरा है, क्या सभी रिटर्न्स भरा है, ये देखना. तो इसको ऑडिट कहते हैं जीएसटी में. So in other words, I can say GST audit is not only for reconciliation of tax liability and payment thereof, but it also encompasses the verification of compliance with the provision of the GST laws. By whom? By a registered person. That is very important. See, whether it is vigilance, whether it is assessment, or whether it is audit, all these three wings can do the checking of a registered person. But for vigilance, there is one more. A person who is taxable but has not taken registration, they can go to that. But audit can do the audit of the records maintained by a registered person, whether he is doing taxable supplies, exempted supplies, or both. See, if he is doing exempted supplies, वो तो registration लेना ही नहीं है, तो वो situation आता नहीं है. But certain people take registration in the hope that they will do taxable supply later on. So then they can do the audit of that also. Now, what does audit do? It also educates. Once the audit is done for a specific period, it also educates the taxpayer कि भाई आगे मुझे क्या करना चाहिए, आगे मुझे क्या करना नहीं चाहिए. So it is also educatory audit. So but the definition that I gave just now, it is obvious. One thing is sure. Every registered person, whether making taxable or exempted supplies or both, has to maintain certain records and other documents prescribed by the department and also file GST returns. So this is very evident. So we will talk about that and go to our actual topic of the day, which is the audit, actual audit being conducted. लेकिन क्या मैं सिर्फ मेरे बोलने से ऐसा होगा? Just because I tell you कि आपको record maintain करना है, is it so? No. It has to back by law. It has to be backed by an authority. So just for academic purpose, लेके चलिए, बस आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि section 35 always act is there and its rules are there. The act lays down what are you supposed to do. The rule lays down how are you supposed to do. So कोई भी act आपको नहीं मिलेगा जिसमें rules नहीं है. और rules होना है तो act तो जरूरी है, because that is the provisions of the law. ठीक है. तो section 35 read with rule 56 to 58 mandates that every registered person has to maintain records and other documents. We will come to the other documents later on. And sections 37 to 45 read with rules 59 to 67 mandates that every registered person has to file returns. Now the second part I just said, because I said audit क्या करता है, it also ensures compliance. So इसी के लिए तो आज हम audit के बारे में ही बात करेंगे, records के बारे में बात करेंगे, लेकिन returns के बारे में आज तो नहीं लेंगे. Now coming to the records. Now there are so many types of registered persons. If you're a normal taxpayer, you will think बस जैसे बिल्ली आंख बंद करती है तो उसको लगता है कि सारा जग सो गया, वैसे ही नॉर्मल टैक्सपेयर को लगता है बस मेरा जैसे ये टैक्सपेयर सभी लोग हैं. ऐसा नहीं है. देयर आर वेरियस टैक्सपेयर्स. नॉर्मल टैक्सपेयर उसमें भी 1.5 करोड़, उससे ऊपर और 5 करोड़, उससे ऊपर. दूसरा है कंपोजिशन टैक्सपेयर. I will not go on to describe all these things. Then there is a tax deductor. Then there is a tax collector. There is a casual taxable person.
there is a non-resident taxable person, there is an input service distributor. ये सभी को रजिस्टर करना है जीएसटी एक्ट के तहत। तो आज हम लेते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर, क्योंकि अगर कोई भी अपने ऑडियंस में विविध रजिस्ट्रेंट है तो उसका क्वेश्चन जरूर लेंगे, लेकिन मेनली जो ऑडिट होगा हम सोच के चलते हैं कि ऑडिट हो रहा है उस टैक्स पेयर का जो टैक्सेबल सप्लाईज भी करता है, एग्जम्प्टेड सप्लाईज भी करता है और 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। लेट अस अस्यूम इट, राइट? So, as I said, we will assume that all are normal taxpayers. So the manual or electronic records. Now, you can maintain the records manually, you can maintain it electronic format. If you were a taxpayer in the earlier regime, even the formats were given. आजकल कोई format नहीं है, खाली refund में कोई format है ऐसा भर के दो, बाकी कोई format नहीं है which you maintain. But most importantly, it has to be maintained at the principal place of business and additional place of business also. But additional place में वही होगा जो वहां से संबंध है। वहां आपको रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ से वैसा वर्षा हो सकता है कि आप यहाँ मेंटेन करते होंगे दोनों, लेकिन वहां पे वहां का रिकॉर्ड होना चाहिए। So what are they supposed to maintain through these records? I am not going to totally elaborate क्योंकि बहुत सारा है. When there are questions about that, we will come to. See, what the taxpayer has to maintain is a true and true and correct account of, if you are a manufacturer, you have to have a true and correct account of production or manufacture of goods, inward and outward supply of goods and or services. If you are a trader or manufacturer, stock of goods, input tax credit avail, if you avail, if you don't avail, government has got nothing to say. Why I am saying is, in the that is pre-regime, 1.5 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है और आप भरने का भी नहीं है. Either in GST, the variant is that once you take registration, it may be because of the threshold exemption, और it may be because you are voluntary, आपके clients बोल रहे हैं आपको registered होना है, तो आपको सभी पहले पैसे से आपको भरना है या जब से आप registration लेते हैं. तो इसीलिए input tax credit avail, output tax payable and paid, these are two terms. पे करना है कुछ, आपने पे किया कुछ, वो दोनों आपको मेंटेन करना है. Whatever format that you have, goods or services if you are importing, goods or services if you are exporting, इसका भी एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है. क्या क्या मेंटेन करना है? Because a question has come from an exporter, I will answer that. RCM एक बड़ी चीज है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसका भी मैं एक सेक्शन एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि जब ऑडिट होगा ऐसा टर्म्स आएगा तो आप डर जाएंगे क्या बोल रहा है ये बंदा. 9(3) है, सेक्शन 9(4) है और सेक्शन 9(5) है. समझिए, एक तो होता है कोई सर्विसेज ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं होते हैं या बहुत पावरफुल सेक्टर है. ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन नहीं है? जैसे आप समझो ट्रांसपोर्टर है, रेंट कैब ऑपरेटर है, छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है, झंझट नहीं चाहिए. ऐसे सर्विसों में गवर्नमेंट बोलती है कि जो रिसीव करता है वो ही टैक्स भरेगा अपने आप उसका वैल्यू लेके. वैसे ही अगर एग्रीकल्चर से कॉटन वगैरह लेते हैं तो एग्रीकल्चरलिस्ट जो किसान है वो नहीं भरेगा, वो नहीं रजिस्ट्रेशन लेगा, वो आपको लेना है और आपको भरना है सही वैल्यूएशन पे. ठीक है. और एक सिस्टम हुआ करता था अक्टूबर 12, 2017 तक कि आप यदि कोई अनरजिस्टर्ड आदमी से कुछ लेते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ लेते हैं और 5,000 के ऊपर आपने गुड्स या सर्विसेज लिया,
तो आपको भरना था स्वयं, लेकिन वो बहुत हल्ला बल्लो हो गया क्योंकि चाय की दुकान, छोटे मोटे पानी पूरी वाले, उनके सब प्रॉब्लम हो गए, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको ये कर दिया। अब सिर्फ एक है बिल्डर के लिए। इफ somebody is a builder in the audience, then I will answer that, otherwise we are only taking time on that। वो 9(4) में आता है। मेन और एक है 9(5), आपको लगेगा कि क्या है, जैसे बहुत आपने सुना होगा सर्विस में कोई प्रमोशन नीचे से होता है, कोई हो, लाइक फॉर एग्जांपल माय सर्विस, मैं प्रमोट हो गया असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर 25 साल का बंदा डायरेक्ट भी आता है, वो है सिविल सर्विसेज वाला। और तीसरा, आजकल गवर्नमेंट ने लैटरल एंट्री शुरू किया है। सीनियर्स इन द प्राइवेट सेक्टर आर बीइंग ड्राफ्टेड इन हायर मैनेजमेंट ग्रेड्स। वैसे ही देयर इज अ लैटरल पेमेंट ऑफ टैक्स। कौन भरता है? जोमैटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। ये थोड़ी ना आपको सर्विस देते हैं, ये खाली सर्विस के मीडियम है। आप यदि अमेज़न में कुछ खरीदते हैं बनियान, रूपा कंपनी का डीलर आपको बिल देगा, लेकिन डिलीवर करेगा अमेज़न। तो इट इज हिज ड्यूटी टू कलेक्ट द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट रूपा का डीलर। सो दैट इज कॉल्ड लैटरल 9(5). इस पे आप चिंता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट एक्सप्लेन कि क्या क्या है। तो दीज आर द वेज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9(3) और 9(4) का है। 9(3) अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सही में भरा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटपुट टैक्स पेएबल भरना, पेएबल और पेड मिसमैच होगा तो ठीक है। इनपुट आरसीएम में आपको जाए, यू हैव टू गिव विशेष ध्यान, क्योंकि पेएबल है कि नहीं पहले आपको तय करना है। अगर आपने पे बाय मिस्टेक कर दिया, उसका आपको क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। Payable and paid, because the definition of input tax credit says the RCM payable can be taken as credit, whereas in case of आपने जो सप्लाईज लिए है, उसमें जो सामने वाले ने टैक्स भरा है उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये पिछले में भी, सीरीज में भी मैंने बताया था। सो दिस इज द ट्रू एंड fair or correct account has to be maintained. And in the additional place of business, what I already said, records pertaining to that premise. अगर additional place of business में मैंने अपने goods मेरे फैक्ट्री में, या मैं ट्रेडर हूं, मेरे जो ऑफिस में जगह नहीं है, मैंने बाजू का एक गोडाउन ले लिया है और उसको मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां का रेंट का क्रेडिट लेना है। तो इन दैट केस आप एक गोडाउन कीपर रखोगे, डिलीवरी नोट रखोगे, डिलीवरी इश्यू बाहर आउटवर्ड नोट रखोगे, वो सब वहां मेंटेन करना है। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन देयर। नाउ वी विल कम टू मेन ऑडिट क्या है। अभी आप में से कोई लोग must already be educated that what is the authority, which section is the authorizes the officers to enter your premises for the purpose of audit, not for the purpose of vigilance। अगर विजिलेंस वाले आते हैं तो या तो सर्च वारंट या तो एंट्री वारंट लाएंगे, यहाँ ये लोग नहीं लाएंगे। इनको एक्ट में they have been allowed। Now, which is the section? Section is a single one. There are two sections, but what is important for a normal taxpayer? I said we are talking about a normal taxpayer having 5 crores or more turnover. Section 65, read with Rule 101, gives the power to the departmental officer or to the department itself to conduct audit either at their premises or at taxpayers' premises. रिपीट, या तो वो ऑडिट खुद के प्रीमाइस में भी कर सकते हैं या आपके प्रीमाइसेस में कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने ये वर्ड क्यों डाला है? इसीलिए डाला है कि छोटे छोटे टैक्स पेयर रहते हैं, उनको क्यों सताना, जाओ जाना, वो लाइट डालेगा, करंट डालेगा, कंप्यूटर ऑन करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए सुविधा है कि ऑफिसर उनको अपने ऑफिस में बुलाता है
और ये रेयर ओकेशंस रहता है जब सरकार आपको चाय पिलाती है. So if you are a small taxpayer, there are certain advantages. You will be called there. See, when you are called to a official premises, बहुत सारा documents वो मांगेगा नहीं. ठीक है. So now we are 5 crores. So obviously they will come to you. So at the taxpayers' premises, this is the authority. The authority clearly, if you go through section 65 and rule, it says that they can visit your premises. So unnecessarily, when the first communication comes, आप क्या authority से आ रहे हैं ये पूछ के आप time व्यर्थ कर रहे हैं. So don't argue on that. The authority is there in the law for them to visit. Now, second thing is how to be prepared. Before even coming to that topic, how to be prepared, you must understand, I have already told you कि यदि आप या तो स्टेट में रजिस्टर असाइंड होंगे या तो सेंटर में. तो यदि आप देखते हैं, आप अपना पोर्टल में जाते हैं और आप देखते हैं असाइन टू स्टेट, तो यू मस्ट हीव अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि वो लोग ऑडिट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का करते हैं. अगर सेंटर होता है तो सेंटर 5 साल मांगता है. सो वो अभी चल रही है चर्चा, वेदर बोथ शुड फॉलो द सेम और वी मस्ट सेंटर शुड फॉलो द स्टेट मॉडल, बिकॉज हाई कोर्ट जजमेंट्स हैव कम इन फेवर ऑफ द स्टेट that 1 year का ही करना है at any time, be it assessment or be it this one. ठीक है ना. तो अगर यदि आप स्टेट में हैं तो मैं तो बोलता हूं at the end of the financial year and at the end of the period, that is the 31st December, जहां आपको GSTR 9 भरना है, तो आप तैयारी तभी शुरू कर लीजिए. क्या है, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ आपको GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 और GSTR 9C रखना है. इनवॉइसेस तो आप इलेक्ट्रॉनिक 99% कीप इट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड, या अगर इनवॉइसेस आपका 50 होता है एक महीने का, तो 12 महीने का बनाने में क्या है. सो एक एक्स्ट्रा सेट और ऑलवेज एक फोटोकॉपी ही रखिए, बिकॉज इफ द ऑफिसर और द ऑडिट टीम आस्क, इट इज आराम से हम दे सकते हैं. डोंट कीप द ओरिजिनल इनवॉइसेस एक्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइसेस, दे मे आस्क यू फॉर वेरिफिकेशन. ठीक है. अगर सेंटर का हो तो ठीक है, start slowly whenever you get the time, tell your associates or subordinates to start collecting and be prepared for audit. I have told you audit के लिए क्या क्या हम चेक करेंगे, माने what the department will check. So this is very simple. मैंने outward tax कितना पिया, tally my 9 will tally, your CA will tally it and give it to you. So that is very easy explanation. बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्या लिया, आजकल तो बहुत सिंपल है, 2B सही आपको लेना है. और एक है टाइम लिमिट जो है अगला बरस के नवंबर तक, आपको 30 नवंबर तक आपको ले लेना है क्रेडिट. उतना ही ना, जो आप वो बरस में नहीं लिए हैं अगला बरस में लेने वाले हैं, उसका आप रिकॉर्ड रखिए. तो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट. सो नाउ वी कम टू हाउ टू बी प्रिपेयर्ड. फर्स्ट, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट and I could see how the department behaves with the taxpayer, I request you all to adopt a cooperative attitude and not a confrontist one. आप ये ना समझे, आपको मालूम है सामने वाला ऑफिसर ठीक नहीं है, फिर भी एक आप कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपका आधा से काम पूरा हो गया समझिए. वो आपका सब कुछ सुनेगा. अब वो बोलेंगे अरे यार बैलेंस शीट दिया, बोलेंगे अरे साहब वो मैं ऑडिटर मेरा सीए को दिया हूँ, वहां से कौन लेके आएगा, मेरे पास आदमी नहीं है, बरसात हो रहा है. तो वो कोऑपरेटिव नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और ये बोलेंगे साहब वो तो सिस्टम में मिलेगा आपको 3B1, आप कहाँ से मेरे को पूछ रहे हैं. सही बात है, सिस्टम से वो लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखेंगे. सर ये रहा आपका GSTR 1, ये रहा 3B, ले लीजिए, क्योंकि अपने मन में तो कुछ खोट नहीं है. वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. वी प्रेस्यूम दैट मिस्टेक्स कुड बी ओनली अनइंटेंशनल. इंटेंशनल एरर तो 99% बिजनेस नहीं करती है. वो 1% ब्लैक शीप ही है, वो तो ऑडिट के दिन को और उसको लेटर को मानेगा ही नहीं. ठीक है. तो लेट अस अस्यूम दैट वी आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर, तो कोऑपरेटिव होना चाहिए.
एक और सजेशन है, ऑडिट से घबराइएगा नहीं. It is wise for any businessman or his staff to get the audit done, because once audit is done, the department cannot approach you for the same information and the same issue again. There are 99, 110 judgments to that effect. एक बार ऑडिटर आ गया, देख लिया, कुछ छूट भी गया उससे या आपसे भी बताने में छूट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया वो काम. तो इट इज वाइज टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड. इसीलिए इस रिक्वेस्ट में मैं बोल रहा हूं, अगर हम सेंटर के पास असाइन है तो बेटर है, आपका 5 बरस चला गया. स्टेट है तो 17-18 हो गया, अभी तो टाइम हो गया. जस्ट टेकिंग क्रोनोलॉजिकली तो 20-21 हो गया, तो अभी 21-22 के लिए वो रेडी रहना है अपने. सो दिस इज ऑलवेज वाइज टू गेट योर रिकॉर्ड्स ऑडिटेड. For academic interest, download a soft copy of the department audit bulletin which has come in 2019. Soft copy, मैं hard copy नहीं बोल रहा हूं. Soft copy रखेंगे ना, आपका rights क्या है आपको मालूम पड़ेगा उसमें. You will know what the auditor can do, what he cannot नहीं है, what the auditor can do, और आपके rights क्या है उसमें आपको मालूम पड़ेगा. इसीलिए ऑलवेज सॉफ्ट कॉपी. आजकल एक्ट का भी है, रूल्स का भी है, अपडेटेड वर्जन्स आ जाते हैं, तो आप एक फोल्डर बना के उसमें आप अपडेट करते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल व्हाई आई एम सेइंग एक्ट, ऑर्डर, मैनुअल, अगर वो आता है ऑडिटर और बोलता है यार ये सेक्शन 3 के हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो क्लिक करके आप देख सकते हैं सही में बोल रहा है कि नहीं करके, है ना. ये नेसेंट एक्ट है. एक्ट को आने में सिर्फ अभी 8 साल ही हुए हैं. मिस्टेक्स दोनों तरफ से होती है, इसीलिए एक सॉफ्ट कॉपी रहना बहुत अच्छा है आपके लिए. एंड मोर ओवर एकेडमिक इंटरेस्ट, आप उनके जाने के बाद थोड़ा एक एक्स्ट्रा हाफ एन आवर बैठ के देख सकते हैं कि ये मैनुअल क्या कहता है, कितनी बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा है ऑडिट के बारे में. सो शुरुआत होती है एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं ऑडिट 01, ADT 01. देखिए अर्स्टवाइल रेजिम्स में बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स थे, लेकिन आप जीएसटी एक्ट में जाते हैं ना, बहुत ही अच्छा है. रजिस्ट्रेशन का REG 25, REG 26 ऐसा रहेगा. रिटर्न्स का रहेगा जीएसटी रिटर्न A1, जीएसटी रिटर्न 2B, जीएसटी रिटर्न 3B. वैसे ही ऑडिट के लिए उन्होंने किया है. अगर ट्रांसमिट में है तो ट्रांजिट चेक्स में पकड़ते हैं तो MOV, मूवमेंट. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये एक्ट बना है. इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू हाउ द जीएसटी हैज बॉट ईज ऑफ बिजनेस एंड हाउ मच थॉट प्रोसेस हैज गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ जीएसटी. इट्स अ वंडरफुल एक्ट. है कमियां थोड़ी बहुत है, वो अभी इवॉल्व हो रही हैं, सेटल भी हो रही है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट दैट हैज बीन फ्रेम्ड. कोई दोनों तरफ से कुछ भी छूटा नहीं गया है. फिर भी होती है इवेशन, वो बात अलग है, बिकॉज इंडियंस जुगाड़ू में ग्रेट हैं तो होते रहता है. दैट इज नॉट कमेंटेड अपॉन आल्सो, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स. अभी लिटिगेशन हो रही है, लेकिन थोड़े टाइम में लिटिगेशन सब खत्म हो जाएगी. दिस इज अ प्रॉमिस आई एम टेलिंग यू. We consultants or chartered accountants are going to have no work, because all you will be well educated. अपने आप सिंप्लिसिटी में कर सकते हैं. कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न अपने ही भरते हैं आजकल, है ना कि नहीं. It has become easy. This time it's going to be difficult, क्योंकि अगर आपका दूसरा कुछ इनकम होगा तो वो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वेरी इजी. वैसे ही इसमें भी आने वाली है. फेसलेस ऑडिट होने वाली है, फेसलेस असेसमेंट होने वाली है. आसाम का ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा, तमिलनाडु का ऑफिसर आपको ऑडिट ना, उसको मालूम आप कहाँ है. योर जीएसटी एंड ही विल नो महाराष्ट्र में है, लेकिन उसका एम्प्लॉय कोड से आपको नहीं पता चलेगा कि वो आसाम में बैठा है कि वेस्ट बंगाल में बैठा है, जब तक वो फोन नहीं करें और वेस्ट बंगाल होगा या तमिल होगा तो एक्सेंट से आपको समझेगा. फेसलेस होने वाला है, एक्सेप्ट विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन, बाकी सब फेसलेस होने वाला है. उसके लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा. So the first document that you will receive will be a letter or an email. See,
every form of communication is valid. There are a lot of judgments. Only in a case of a notice and orders, now certain high courts have been saying कि physical orders मिलनी चाहिए, लेकिन वो ultimately सुप्रीम कोर्ट में टूटेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन आज के जमाने में जहां व्हाट्सएप चलती है बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, एक रूम से दूसरा रूम व्हाट्सएप में बात करते हैं, इट्स अ कंफर्म मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या ईमेल जरूर बस नहीं हो गया? ठीक है, ईमेल में या फिजिकल लेटर थोड़े 2-3 दिन के बाद आएगा, स्पीड पोस्ट में आएगा. तो ADT1 करके आता है, उसमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो इंट्रोड्यूस करता है कि मैं ऐसा हूं, सुप्रिंटेंडेंट हूं या असिस्टेंट कमिश्नर हूं, मैं इस आपके ऊपर अथॉरिटी है मुझे करने की, मेरा ऑफिस एड्रेस ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा फोन नंबर ये है, और मैं हमारी टीम ये मानती है, और म्यूचुअल डेट्स हम ले लेंगे, लेकिन 15 दिनों में 15 डेज पहले आपको एक लेटर देना है कि ये मेरे को चाहिए. So these are the records which are you are supposed to maintain. If you feel that some other records are being asked, you can politely answer back. But as I said, first adopt a cooperative attitude. I am assuming that we are all perfect taxpayers, honest taxpayers. We have nothing to hide except unintentional errors. तो ये समझ के मैं बोलता हूं, जो मांग रहे हैं वो देना है. यू कैनॉट, ये मैंने पहले ही भी बोला, यू कैनॉट रिफ्यूज एनी डॉक्यूमेंट दैट दे आर कॉलिंग फॉर. इसकी भी अथॉरिटी है. रूल 56(13) कहता है कि जो आपको मेंटेन करना है, अगर ऑफिसर मांगता है तो आपको देना है. दिस इज अ जनरल रूल. असेसमेंट के लिए मांगता है, ऑडिट के लिए मांगता है, विजिलेंस मांगता है, तो आपको देना है. प्लीज डोंट रिफ्यूज एनी डॉक्यूमेंट. इफ योर CA सेज, आप यदि एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, GST ऑफिसर हैं आपके कंपनी में, और CA बोलता है ये देने की जरूरत नहीं है, प्लीज ब्रिंग इट टू दी आईज एंड ईयर्स ऑफ द मैनेजमेंट. आप अपने आप कुछ नहीं करें. मैनेजमेंट सेज मत दो, दे आर टेकिंग द रिस्क. तो कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखे, जो डॉक्यूमेंट देना है दे. और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं तो आपको हिडन फाइल्स, पासवर्ड्स, कोड्स सब देना अनिवार्य है. यू कैनॉट से कि हमारा सैप है, वो ये है सीक्रेट, यू हैव नथिंग टू यू टू डू. If you are maintaining an electronic record, we are allowing you to do that. We are not saying no. लेकिन जो भी उसके फाइल्स हिडन है, जो भी पासवर्ड्स हैं, जो भी आपने कोड्स दिए हैं, वो सब आपको देना है ऑडिटर को. और जैसे ही वो लेटर आता है, एक कॉपी आप अपने रिकॉर्ड्स में रखिए. दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट. ऑडिट प्रोसेस की शुरुआत वो लेटर से आती है, जो उसको बोलते हैं ADT1. तो बढ़िया सा उसका एक कॉपी बना के, ओरिजिनल तो आप रखेंगे, एक ऑडिट एक फाइल बना लीजिए, अलग से फाइल, उसमें आप डाल दीजिए. आपके कंसल्टेंट या CA को असिस्टेंस के लिए कांटेक्ट करें, अपने आप कुछ भी न करें. व्हाई आई एम सेइंग, आप तो अपने ऑफिसर, गवर्नमेंट डज नॉट से दैट यू हैव टू मीट द ऑफिसर एट ऑल, लेकिन CAs आते रहते हैं. तो जैसे आप ADT1 बोलेंगे, अरे ये तो आनंद नटराजन साहब है, अपना खास है, डोंट वरी साहब, फटाफट फिनिश करके देता हूँ. नहीं साहब, ये तो आनंद राव साहब है, बहुत खड़ूस है, थोड़ा टाइम लेते हैं अपन, ऐसा. सो दे आर हैविंग एवरीडे कॉन्टैक्ट. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. और मेरा सजेशन, नॉट दैट बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम सेइंग, खाली फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, अपॉइंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अ GST स्पेशलिस्ट, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ही विल गो थ्रू. जैसे ADT1 आता है, आप मैनेजमेंट को बोलिए सर ऐसा ऐसा है, हमको रेफरेंस मिला है, इसको रखते हैं, एक बार आके देखने दीजिए सर. उसका जो भी लेता है 5-7 जो भी है लेने दीजिए, लेकिन एक बार वो देख लेते हैं, भाई ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो इट विल बी रेडी, बिकॉज इज अ GST स्पेशलिस्ट. CA, अभी आप बनिए के दुकान में जाते हैं, उसको शुगर और ब्रेड में नुकसान है, फिर भी वो रखेगा, क्योंकि आप दाल भी उससे लेते हैं, राइस भी लेते हैं,
पाउडर भी ले लेते हैं, लाला भी लेते हैं, तो अगर आप ब्रेड और शुगर रखेंगे नहीं रखेंगे तो वो बोलेगा नहीं चाहिए तुम्हारे से। तो वैसे ही सीएस आजकल लेते हैं, दो दे आर वेरी गुड इन वैट एंड आईटी, जीएसटी भी ले लेते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज क्लाइंट्स। सो एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट या जब विजिलेंस टीम आती है, इट इज बेटर टू अपॉइंट अ जीएसटी स्पेशलिस्ट हु वर्क्स ओनली ऑन दैट। एक बार ले लीजिए और देख लीजिए, हाँ ये बराबर है, डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है, जो आपका सीए का साहब के साथ भी एक मीटिंग कराइए, उसका बैठिए, आपका मैनेजमेंट से भी एक सब कुछ होने के बाद एक राउंड, एक 15 मिनट बिठा लीजिए, सब ये खामियां हैं, ये कर लेते हैं, सीए बोलेगा यस या बोलेगा नो, या बोलेगा नहीं नहीं हमने कर दिया, सब आपको दिखाया, जो भी है। सो इट इज बेटर टू एडवाइज अपॉइंट a GST specialist on one-time basis, at least for the first time, to assist you during the audit, या प्री ऑडिट या पोस्ट ऑडिट। ठीक है, दिस इज ऑफ कोर्स आई हैव सेड इट इज ऑन यू। पहली बार जब लेटर आती है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि स्वयं आप मैनेजर या ओनर एक बार ऑडिट ऑफिस जाके ऑफिसर को हेलो बोलिए। इट इज वेरी गुड जेस्चर। सीए को लेके जाइए, नहीं लेके जाइए, उस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बार जाइए, सर आई एम फ्रॉम दिस, आपका लेटर आया है। ऑफ कोर्स इट ऑल समझ, मैं बदलापुर में हूँ और बैठा है उधर थाने में बैठा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट गो। बट यहाँ तो नवी मुंबई में तो सभी एमटीएनएल बिल्डिंग सेक्टर 17 वाशी में बैठते हैं, तो आप लोग जाके हेलो सर, उसमें नंबर है, फोन करके सब हम लोग आते हैं ऐसे मिलने के लिए, हेलो हाय, वापिस एक आपको मिलेगा कि सरकार की तरफ से आपको एक चाय मिलेगी, बढ़िया सा। सो दैट इज अ जेस्चर दैट, देखिए ये लोग ऑडिट इंटेंशन से आते हैं, फिर बोलने का सर मेरे सीए है गुजराती जेट कंपनी, वो लोग कभी आगे से ले जाएंगे सर, हम उनको ऑथराइजेशन दे देते हैं, कुछ भी होगा था, ये भी हमारा नंबर है सर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो दैट रिवील्स अ ट्रू इंटेंशन एंड क्रिएट्स अ फ्रेंडशिप। सी, when you don't cooperate और when you don't show some gestures, वो सब कुछ देखेगा। रैंडमली देखना जो ऑडिटर है वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, लेकिन ऐसे ऑफिसर्स जिसको उसको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है किस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं नहीं ये कुछ ना कुछ तो उल्टा करता होगा, तो वो एक एक चीज देखेगा। अगर आप 50 इनवॉइस किए हैं, उसका 50 भी 1 लाख के ऊपर है, तो 50 का भी वो ई-वे बिल मांगेगा। एक बार GSTR1 देख लिया, मैंने देखा कि परफेक्ट है, तो जनरल इंटेंशन इज सही रहेगा सब कुछ, और लेकिन सब कुछ देखेगा, आपको 10 बार कैबिन में बुलाएगा, ऐसा है वैसा है। इसीलिए प्लीज विजिट फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट विजिट्स प्री ऑडिट के पहले 15 दिन के अंदर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, जब ऑडिट होती है मैं बताऊंगा क्या कहाँ बैठते हैं कैसे हैं, वहां भी सीए साहब को बिठाइए आप, और बढ़िए बैठेंगे वो साथ में। और पोस्ट ऑडिट तो जब होता है तो उनको मिलना ही है, दे कैन डू द जॉब, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ ऑडिट टीम जनरली एक सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी crores are there, there is no mandate, but sometimes the assistant commissioner also comes leading the team, okay, but generally क्योंकि आजकल इंस्पेक्टर्स 4-5 साल में प्रमोट हो जाता है, तो इंस्पेक्टर्स की कमियां हैं, तो सुपरिटेंडेंट 2-3 सुपरिटेंडेंट भी आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर, एंड एक आध इंस्पेक्टर भी आता है। तो समझिए आपका अगर 5 से 10 करोड़ है, तो माई अस्यूम 3 ऑफिसर आएंगे, वो है मैंडेट में, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैनुअल में आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितने ऑफिसर्स आ सकते हैं, तो आएंगे, चेक करने के लिए आएंगे। सो अगर ऑडिट उनके ऑफिस में होता है, समझिए उन्होंने बुलाया, अब 1.5 करोड़ के अंदर है या 5 करोड़ के अंदर है, उसने बोला आप ये आ जाइए, इस डेट में आ जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, या यदि वो बोलता है पहले 10 दिन पहले दे दीजिए, 15 दिन हुआ, आप आज दे दीजिए और नेक्स्ट वीक आइए, तो जो भी आप रिकॉर्ड्स देते हैं, भले वो जेरोक्स कॉपीज हो, एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ दे दीजिए। एक्नॉलेजमेंट देना चार्टर में है, वो ऑफिसर नहीं देगा तो उसका इंस्पेक्टर देगा, नहीं तो कॉमन डाक से वो आपको रिसीव्ड करके साइन लेके देगा।
You can even ask the officer who is signing to put his name there. They cannot refuse. जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो आपके रिकॉर्ड्स में, जो आपने ADT1 फाइल किया था उसमें रख दीजिए एक कॉपी। हमेशा जेरोक्स ले लीजिए, ओरिजिनल लेटर लेने दीजिए। जनरली इट इज सीन दैट ओरिजिनल यूज हो जाता है। ठीक है, अभी ऑडिट के दौरान क्या करना चाहिए? माय सजेशन इज डोंट बी ओवर कॉशियस और डोंट बी ओवर एंथुसियास्टिक। वो जी शुरू कर दिया GSTR1, आप तुरंत सर GSTR1, ऐसे कुछ नहीं। जो मांगता है ऑफिसर, समझ लीजिए कि वो क्या मांग रहा है। अगर वो बोलता है GSTR1 दिखा दिए सर, 1 महीने का दो, सैंपल दे दो, ऐसे एक ही देना है। नहीं साहब ये लीजिए, हमारा है, हम बाउंड करके रखते हैं, एक कॉपी डायरेक्टर के कैबिन में है। ज्यादा जो अभी सरल लैंग्वेज में मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है ऑफिसर में। देखिए आपके पास 150 काम है। ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर को सिर्फ ऑडिट करना ही काम है, वो पूरा मालूम है कहां से उसको ये निकालने का है। ओके, डोंट आर्ग्यू। आई एम टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग, आपने देखा कि ऑफिसर बिल्कुल रीजनेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ आस्किंग ऑफ रिकॉर्ड्स, नथिंग एल्स। ही कैन नॉट बिहेव इंडिसेंटली, ऐसा नहीं। रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो आर्ग्यू मत कीजिए प्लीज, बिकॉज इट मे बी अ ट्रैप, इट मे बी अ रूज कि आप इमोशनल होके, हाइपर होके दूसरा ऐसा कुछ बक दे। सेकेंड ईयर ऑडिट आता है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं मांग लिया, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप बोल रहे साहब वो पहले वाला ऑफिसर तो ऐसा नहीं था, उसने ये मांगा ही नहीं, उसने तो छोड़ दिया हमको। ऐसे सब बिल्कुल ना बोले, ये उनका चांस है, ट्रैप है। जो पॉइंट्स पहले वाले ऑडिटर ने देखा है, अनइंटेंशनल एरर्स, एंड आई एम श्योर आप लोग करेक्ट किए होंगे, फिर भी व्हाई इट शुड कम अंडर हिज नॉलेज। So don't be over enthusiastic or don't be over conscious. जैसे उसने GSTR1 बोला, सर GSTR1, GSTR1, don't be over cautious, nothing. He is just an officer, you are a taxpayer. ठीक है, तो this is my sincere advice because I have been in the department और हम लोग, I am not saying अच्छे केस किए हैं ऐसे, क्लर्क्स और मैनेजर्स कुछ भी बोल दिया, हमने पकड़ लिया और केस हो गया है। एक ऐसा जनाब, हम गए थे, टेक्सटाइल का ये था, तो बोला ऐसा ऐसा, सब हम लोग चिट्ठी में भी लिखते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, सब वो कैबिन में है ना सर, दिखा पूरा निकला हुआ सब, जो बिना टैक्स का निकला हुआ मिला हमको। तो ऐसा बिल्कुल आप, अगेन आई अस्यूम दैट वी आर 100% ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स, दैट इज व्हाई। तो ये सब होना ही नहीं है, ठीक है। बी काम एट ऑल टाइम्स। 1:30 हो गया, वो लंच के लिए उठता ही नहीं है, 2 बजे हो गया, आप डायबिटिक है, आपको खाना है, बी काम, excuse politely and go outside, keep an assistant inside and don't ruffle their feathers. एक क्या साहब 1:30 बज गया, हमको क्या खाना नहीं है क्या, आप अभी पूछ रहे हैं, don't, he is not having lunch, there is no time to do the audit ना। 6 बजे के बाद जनरल क्लॉज एक्ट में आप लेडीज को नहीं रख सकते हैं, समझिए, वो सब है, लेकिन ये नहीं बोल सकते आपको खाना ही पड़ेगा एक टाइम में, नो, देयर इज नो थिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉयज को 8 घंटा काम करना है और आधा घंटा लंच लेना है, वो कोई टाइम नहीं फिक्स्ड है, कभी भी आधा घंटा लंच। 10 मिनट में फिनिश करो, 20 मिनट गाना सुनता है, व्हाट्सएप देखता है, कुछ नहीं, बट 8 आवर व्हाटएवर आवर्स ही हैज टू वर्क, तो बी काम। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग कि आप रफल ना करें, कोऑपरेटिव रहें, आर्ग्यू नहीं करें, बिकॉज हम समझ रहे हैं कि आपके रिकॉर्ड्स परफेक्ट है, 100% क्लीन है, लेकिन ऐसे प्रोविजंस हैं एक्ट में, छोटे मोटे मिस्टेक के लिए भी वो लोग सेक्शन 125 का रिसोर्ट करके, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, मैं आपको पेनल्टी लगाता हूं। सिंपल एरर्स क्या है, आप लोग को मालूम है ना कि आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपके दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए। बहुत सारे करते नहीं है। आप यदि सेक्टर 17 दुकानों में जाते हैं, पॉपुलर सेक्टर्स में रहता है, क्योंकि बहुत सारा केस हुआ है और 50-50 हजार की
बजी है उनकी, इसीलिए वो लोग डालते हैं। दूसरा एक जो जिसको मालूम नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक प्रोमिनेंट प्लेस में डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे आप होटल जाएंगे, ऊपर एक चांदी का रहेगा, लक्ष्मी जी रहेगी, हनुमान रहेगा, गुरु जी रहेगा, उसके नीचे आप देखिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट और जीएसटी का भी रहेगा। दैट्स अ प्रोमिनेंट। तो ऑफिसर बोलेगा दिस इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर मी। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये प्रोमिनेंट है ना, ये तो बराबर है सबको दे। नो, मेरे हिसाब से प्रोमिनेंट नहीं है, मैं लगाता हूँ, आप फाइट कर। ये सब झंझट वो निकाल सकता है, इसीलिए आप आर्ग्यू ना करें। सम पीपल इन द ऑडियंस मे नॉट अग्री, ठीक है, मैं एडवाइस कर रहा हूं कि नहीं ये सब छूटने दीजिए। दूसरा है, आपको मालूम है जो भी आप मैनुअल रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। अगर आप इनवॉइस निकालते हैं तो सीरियल रखेंगे, अब प्रोडक्शन रजिस्टर में थोड़ी रखेंगे, बोलेंगे देखते हैं करके, वो बोलेगा नहीं रखा है, मैं मारता हूँ 1 लाख रुपया इसमें। कोई भी एंट्रीज आप इफेस नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। उसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का साइन काटा कुटी में होना चाहिए। ये सब इंट्रिकेसीज है। वो बोलेगा आपने ये वायलेट किया, मैं मारा, आपको पेनल्टी। See, as an auditor, as a vigilance fellow, I have seen such, I will not say frivolous, technically correct, but logically not true. लेकिन ये कर सकता है ऑफिसर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ द ईज ऑफ बिजनेस, आई एम थिंकिंग फॉर द ट्रेड, दो आई बीन अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, कि आप कोऑपरेटिव और स्माइलिंग फेस रखते हैं तो ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा पूछते नहीं, ठीक है बार हो गया, मैं जा रहा हूँ 5 बजे, तो पहुंचा देगा ऑफिस में, वो रिकॉर्ड आ, ठीक है ऐसा। ट्राई टू कंक्लूड द ऑडिट इन 1 डे। देयर इज नो नेसेसिटी कि एक ही दिन में होना है, उसको ऑडिट 3 महीने में कंप्लीट करना है। और यदि 3 महीने में नहीं है तो और एक 3 महीना कमिश्नर से परमिशन लेगा, लेकिन उसके पास 6 महीना है। कैन आई से उसके पास, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर टीम, दे कैन कम ट्वाइस, दे कैन कम थ्राइस, दे कैन कम 4 टाइम्स, देयर इज नो बार। तो एवरी टाइम दे विल से मेरे को ये देखना है, अब बोलेंगे सेम रजिस्टर मेरे को वापस देखना है, कुछ नहीं कर सकते इसीलिए। और दूसरा जो है, वही एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, गोडाउन कीपर को ये रखना है या एसडी को ये रखना है, वो सब हम नहीं ले रहे हैं, वो नहीं मेंटेन किया करके पूरा 1 लाख का पेनल्टी मार देगा। खाली रजिस्ट्रेशन का मैंने 50,000 बोला। देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच आईजीएसटी एक्ट हैज नो कंट्रोल, तो उसमें आप 50,000 पेनल्टी नहीं लगा सकते। जहां जहां रजिस्ट्रेशन हैज टू बी टेकन अंडर द लोकल एक्ट्स ओनली, इसीलिए आईजीएसटी एक्ट मैंने पहले भी फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज ऑफ पाठशाला में बोला है कि आईजीएसटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज जस्ट अ मीडियम, ओके, एंड देयर आर सर्टेन सेक्शंस व्हिच सीजीएसटी इज एप्लीकेबल टू दैट। मेन ये जो मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑफर टी, कॉफी और फूड टू द ऑडिटर्स, लेकिन बेसिक कर्टिसीज तो आपको देना ही चाहिए। पानी पूछिएगा, अतिथि है वो, पानी पूछिएगा, एक जगह बैठने के लिए दीजिएगा। अगर आपका छोटा सा जगह है तो आपको क्लर्क को बोलिए प्लीज उठे, साहब लोग को बैठने दीजिए। In the erstwhile regime, there was a condition that a place, suitable place having airy atmosphere along with a car should be given to the auditors. वो आज नहीं है, because it is expected कि as a Indian taxpayer आप वो सब करेंगे। दैट इज बड़े बड़े ऑफिसर अभी भी पूछते हैं सर आज गाड़ी भेज दो स्टेशन, अगर दूर है तो उनका स्टेशन भेज दो या घर पे भेज दो, सब बोलते हैं। छोटे टैक्स पेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे सब रिक्शा का भाड़ा दे दूंगा, आप आ सकते हैं सर, ये हम जनरली देते हैं, लेकिन एक जगह दीजिए उनको। यदि आप मैनेजर हैं और आप यदि किसी के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक असिस्टेंट को रख के जाइए, ताकि कुछ पूछेगा अरे यार ये रजिस्टर नहीं दिखेगा, या तो वो ढूंढ के देगा या बोलेगा मैं लेके आता हूँ। तो इससे ऑफिसर, देखिए अभी आप इंडिया और ट्रम्प, इंडिया और यूएस का झगड़ा देख रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमको बोडाउन नहीं होता है, लेकिन आप थोड़े बहुत स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं, अरे उसका ईगो है ना, थोड़ा बार हेलो हेलो वेरी गुड यू आर ट्रम्प, यू आर द ग्रेट बोलते हैं तो अपने को ट्रेड डील हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना। वैसा ही ईगो सैटिएट कीजिए ऑफिसर का। अरे क्या नॉलेज है सर, वेरी गुड, फैंटास्टिक सर, आप करके ही जाइए, ऐसा आज ही फिनिश कर लीजिए, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठता हूँ लेकिन आज फिनिश कर दीजिए, ऐसा करेंगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगा।
अगर 4 दिन आके आपका 4 दिन जाएगा, आपका बॉस बोलेगा अरे यार मेरे को आना पड़ेगा क्या, तो इसीलिए ये सब है। तो ये मैंने बोला जो ऑडिट के टाइम एक आदमी को दीजिए, पानी पिलाइए, स्टेशनरी दीजिए, नॉट नेसेसरी बट दे दीजिए, वो बोलेगा नोट पैड दीजिए तो दे दीजिए, मैनुअल नहीं मांगेगा आपसे, कुछ नहीं मांगेगा। कभी कभी बोलेगा साहब मेरे को एक लेटर टाइप करना है, आपका कंप्यूटर अलाउ कीजिए, तो दीजिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन स्टेशनरी वगैरह रबर वगैरह मांगता है, पेन भूल गया, ठीक है साहब पेन ले लीजिए, ठीक है। Now, as I said, audit has to be completed within say 3 or 6 months, as the case may be. अगर 3 months बड़ा है या छोटा भी है या कोई पॉइंट है जो ईज ऑफ बिजनेस के हिसाब से एसएससी के टैक्स पेयर के फेवर में देना है, तो ऑफिसर लिख के देगा कि और एक 3 महीना मुझे चाहिए ये कंप्लीट करने को। तो 3 or 6 months, it is in the manual, it is in the rule, it is in the act, you can go through जो मैंने sections बोले हैं वहाँ लिखा है। The auditors can visit your premises many a times or call for further documents and information. जो भी information उसको reconciliation चाहिए, 9 में भी is not satisfied, आपके 3B1 में भी mismatch है, ऐसा है, फिर भी वो reconcile नहीं हो रहा है, तो he can call you, you cannot refuse. Once this is all over, it is said that the audit is almost over. It is not complete. It is over but not complete. तो जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको एक हार्ड कॉपी लेटर या मेल में भेज देंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर विजिट टू योर प्रीमाइसेस और ड्यूरिंग द विजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एट आवर प्रीमाइसेस। द रिकॉर्ड्स वर एग्जामिन्ड एंड इट इज सीन दैट आपका जीएसटीआर 3B1 में मिसमैच है, भले आप 9 और 9C में कुछ रीजंस लिखे हैं, वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद इट, and hence you are requested to pay the tax along with interest if any and penalty under section 73 या under section 74 वो लिखेंगे उसमें से, ठीक है। we will not go to section 73 and 74, वो कभी दूसरा जब शो कॉज नोटिस का टाइम आता है I will definitely answer that, और अगर क्वेश्चंस भी आता है तो ठीक है। Now, immediately once the observations are there, again he will give you a timeline. आप देखिए 15 दिन देगा आपको, sometimes टाइम भी नहीं देगा, तो तुरंत आपको फोन निकालना है, सब थोड़ा टाइम चाहिएगा, ठीक है। तो आप उसका काउंटर स्टार्ट कर लीजिए। Maybe your GST specialist will help you, or your accountant will help you, your boss will help you, your CA will help you. Start making counters if you don't agree to the observations. बिकॉज आपको वो ऑब्जर्वेशन लेटर ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन लेटर है। अगर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द ऑफिसर, इट इज एक्सपेक्टेड बाय द लॉ दैट द ऑफिसर शुड नो एवरीथिंग, बट देन देयर इज अ सब्जेक्ट इन कॉमर्स लॉ एंड प्रैक्टिस, सो इट मे बी अ प्रैक्टिस दैट द ऑफिसर डज नॉट नो मेनी थिंग्स। इसीलिए वो बोलेगा साहब ये तहत भरना है, आप बोलेगा नहीं सब एक नोटिफिकेशन आया था, लेट फी खत्म कर दिया था थोड़ा दिन के लिए, इसके लिए आप लेट फी नहीं है, तो इनमें एक तो एम्बेरस हो जाएगा, दूसरा अग्री करेगा। इसीलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग काउंटर्स वेयर यू आर नॉट अग्रीइंग टू द ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फॉर्म योर मैनेजमेंट अबाउट इट। लॉट ऑफ टाइम्स हैपेंस कि टू बाय पीस द मैनेजमेंट विल से यार अग्री करो और भर दो, कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है, पेनल्टी कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है, भर देना यार, खत्म करना, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए एज अ मैनेजर or an accountant or an employee, don't take decision yourselves. Go back to your management and say, sir, मैं agree नहीं करता हूँ, सीए साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, इतना इतना वर्कआउट भी कीजिए, इतना मांग रहे हैं वो लोग, इंटरेस्ट इतना आ रहा है, पेनल्टी इतना आ रहा है। और जहां ऑब्जर्वेशन है सब जगह है, आपने कोई रिवर्स नहीं किया, आपने कुछ मटेरियल लिया, वहां उनको मिला, उधर ही सड़ा हुआ मिला, तो विद द एक्ट है, ब्लॉक क्रेडिट है, आपको रिवर्स करना ही है, तो वापस मैनेजमेंट के पास जाइए, ये आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये वर्किंग है, ये पेनाल्टी आ रहा है, साहब मैं भर रहा हूं। एनीथिंग दैट यू पे बियॉन्ड आफ्टर फाइलिंग अ रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, आपको DRC 3 में ही भरना है। सो आप भर के ऑफिसर को एक फॉरवर्डिंग लेटर में दे दीजिए, मेल में एडवांस कॉपी डाल दीजिए, उसका भी एक कॉपी आपके उसी फाइल में डालिए।
बिकॉज बहुत बार हमने देखा है ऑडिट करते समय, देखा है कि साहब अरे ये तो हमने भरा है सर, हमारा ऑफिसर बोला अच्छा कहाँ है चालान, ध्यान नहीं है। ऑफिसर देख सकता है सिस्टम में, लेकिन आपको नहीं याद होगा कि सिस्टम में मैं देख सकता हूँ, आप नहीं दे पाएंगे डीआर सिग्नेचर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉपी लेके वो फाइल में डालिए, ऑडिट के लिए अलग फाइल बनाइए, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, वंस द ऑडिट इज ओवर, आपने 6 पॉइंट निकाला ऑब्जर्वेशंस में, 3 में आप अग्री नहीं कर रहे हैं, अब लिख के दे देंगे वी विल नॉट अग्री, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द ऑब्जर्वेशन। आप ये नहीं बोलेंगे आप नोटिस दे दो, आप ये लिखेंगे कि प्लीज क्लोज द ऑब्जर्वेशन सिंस आवर स्टैंड इज करेक्ट। कोई केस लॉ है, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो भी लगा दीजिए। एंड इन दिस रेस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइंट्स वी हैव हम्बली अग्रीड। हमेशा यूज वेरी पोलाइट लैंग्वेज, हम्बली अग्रीड, यू हैव अग्रीड टू योर कीन ऑब्जर्वेशन, ऐसे सब स्टोरी बना के लिखी है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो डाल के हम ये भराए, ये DRC-3 का कॉपी है। तो जो आपने भरा है ना, उसके बारे में एक कंफर्मेटरी लेटर लेंगे ऑडिटर्स, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, कि हमने अपने आप भरा है, आपके कहने से हमने अपने आप भरा है, कोई हमारे से जबरदस्ती नहीं किया गया, और इस विषय में हम रिफंड नहीं लेंगे। There are many a points which is still a bone of contention in the courts or in the tribunals. तो आज के हिसाब में हमको लगता है भरना है, हमने भर दिया, और कल कोर्ट उसको उल्टा करती है, 2 साल आपके पास है ना टाइम रिफंड लेने के लिए। क्योंकि ये जो टैक्स आप भरते हैं जनरली, अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ वैल्यूएशन, जहां आप क्लाइंट से ले सकते हैं, दूसरा कोई आप नहीं ले सकते हैं, तो अनजस्ट एनरिचमेंट होगा नहीं, इसीलिए आप वो लोग लेके लिख के लेते हैं कि हम उसका रिफंड नहीं लेते हैं। वो उनको क्लोज करने के लिए लगता है, लेकिन लीगली वो वापस अगर आपको मिलना है हो आप रिफंड, आपको मिलेगा। सो डोंट से मैं नहीं दूंगा, दे दीजिए कि वी विल नॉट डिमांड रिफंड ऑफ दिस। ठीक है, तो जैसे आप जो अग्री किए ऑब्जर्वेशन तो उसका एक कंफर्मेटरी लेटर लेंगे, आई थिंक इट इज 10 नंबर कुछ है, वो लेंगे, देन वी कैन से दैट उसका भी लेटर का आप एक्नॉलेजमेंट लीजिए, फाइन। Once that is complete, we can say that the audit is complete. कुछ पॉइंट्स डिसएग्री किए हैं, कुछ पॉइंट्स अग्री करे हैं, उसके बाद आपको एक लेटर लेना है, AD2 लेटर, वो एक कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का होता है। ये लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉपी 2-3 कॉपी लगा के अलग अलग फाइल में रखिए, क्योंकि कल वापस ऑफिसर आएगा कि वापस आपका 2019-20 है, ये तो कर दिया, कौन सा ऑफिसर ने किया, 82 हो गया, तो ये कैन नॉट डू, द लॉ डज नॉट अलाउ हिम टू डू दैट। एक और, यदि आप वो जेरोक्स कॉपी जो आपने दिए हैं, बाई चांस कुछ दिए हैं, बैलेंस शीट्स के कॉपी दिए हैं और आपको चाहिएगा, तो आप एक रिक्वेस्ट लेटर चाहिए, वो लोग आपको टाइम लिमिट में वापस कर देंगे। एक रिक्वेस्ट लेटर डालिए, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, तुरंत देता है तो ठीक है, थोड़े दिन के बाद देता है तो वो भी आप लेटर को अपने फाइल में ले लीजिए। तो इससे ऑडिट कंप्लीट भी होगा, और आप सुकून से रह सकते हैं कि उस साल बिना कोई प्रॉब्लम के, एक्सेप्ट टू द पॉइंट दैट यू डिसएग्री अपॉन, चली गई, उसके बारे में अपने को सोचना नहीं है। लास्ट टाइम आल्सो आई टोल्ड यू, 6 years आफ्टर द फाइलिंग ऑफ दैट एनुअल रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, आपको 72 मंथ्स के लिए वो रिकॉर्ड्स आपको रखना है। तो ऑडिट होने के बाद भी आपको ना, जैसे 6 बरस हो जाता है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन यू हैव गॉन टू एन रूलिंग और यू आर फाइटिंग सम केस, या जो पॉइंट्स एग्री नहीं किए उसके लिए हेल्प होगा तो आप रखेंगे, या तो आप राइटर्स को दे देंगे, जो उसको भी दे देंगे, लेकिन आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो भी कोई आपसे नहीं मांग सकता है। तो ये टाइम लिमिट भी दिया है, तो इससे ऑडिट हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी जो भी क्वेश्चंस यदि हैं, मेरे पास राइटिंग में एक शीट आई है, वो मैं लेने के बाद मैं सेल्वी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी ये है क्वेश्चंस है तो अपन बात कर सकते हैं, नहीं है तो आई विल आल्सो ड्वेल अपॉन कहाँ मिस्टेक्स होता है। एज अ डिपार्टमेंटल ऑडिट ऑफिसर, he is much senior, Anand Rao Saab, and an expert at finding detections.
तो क्या क्या सिली पॉइंट्स में करोड़ों रुपए रिकवर हुए हैं, ये भी मैं समझाऊंगा आपको कि ये सब यदि आप प्री चेक एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, मैंने लिखा है एक चेकलिस्ट बना लो कि ये मैंने चेक किया कि नहीं, तो आप बहुत से इसमें बच सकते हैं, इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकते हैं। एक बार ऑडिट ऑफिसर आता है और कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है और आपने 15 दिन में भी डेबिट किया तो वो उसके क्रेडिट में जाएगा और आपको इंटरेस्ट ही फेनी और पेनल्टी लगेगी। यदि आप ऑडिट के पहले जैसे लेटर आता है और आपको कुछ मिला और आपने भर दिया DRC3 में, क्योंकि आप तुरंत आप 9 में नहीं दिखा सकते, अगले 9 में आप दिखाओगे तो आपका कंप्लीट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। आप इंटरेस्ट और पेनल्टी, इंटरेस्ट तो आएगी इफ एनी है, दैट इज व्हाट आई सेड, इंटरेस्ट वेयर एवर टैक्स इज देयर इंटरेस्ट विल कम इफ लागू होता है तो इसीलिए ये चेकलिस्ट को भी मैं बात करूंगा। तो मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, एक शायद एक एक्सपोर्टर का है, उसमें 2, 3 एंड 4 मैं इसीलिए नहीं ले पाऊंगा, उसमें 2 और 3 क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू ऑडिट। IMC conducts lectures on various topics and general also. So पहला जो तो हुआ था वो जनरल हुआ था, सेकंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, थर्ड वाज फॉर ट्रैवल एजेंट्स, और आज इसके रिलेटेड है, ऑडिट के रिलेटेड है। सो मैं उसी पे सीमित रहूंगा, समय मिले तो बात करूंगा। दूसरा तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न तो इन्होंने मेरे को ऐसा एक प्रश्न पूछा है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं कर सकता हूं, तो मैं एडवाइस करूंगा ही नहीं। अगर वो आप कर रहे हैं कुछ जो लॉ के बाहर जा रहा है, मैं एडवाइस नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जिक्र भी नहीं करूंगा, even though I was in the department or I'm a consultant now, even as a consultant I will not professionally suggest कि ऐसा कर दो करके। जुगाड़ इंडिया में चलता है, ऐसा चल रहा है तो चलने दीजिए। एज अ कंसल्टेंट आई विल नॉट बी टेलिंग यू कि आप ये कीजिए। तो एक रिकॉर्ड्स है, what all records must exporters mandatorily maintain based on our experience, what are the best practices followed by exporters for filing and record keeping of GST records। मेन तो मैंने रिकॉर्ड मैंने बता दिया है, जो भी जेंटलमैन ने पूछा है। एक्सपोर्टर के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं तो कम है आपके ऊपर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप शिपिंग बिल वगैरह होगा, आपका कमर्शियल इनवॉइस होगा, आपका जीएसटी इनवॉइस। बहुत सारे सोचते हैं कि जीएसटी इनवॉइस जरूरत नहीं है, जीएसटी इनवॉइस जरूरी है। विथ यू हैव टू राइट goods meant for or supplies meant for export under letter of undertaking or with payment of tax, ये मैंडेटरी है। वो एक है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, बोलेंगे साहब मेरा फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो है और आपने कॉपरेट नहीं किया, तो बोलेगा ये आपने हेडिंग डाला सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, नहीं डाला, 1 लाख। तो ये सब पॉइंट ध्यान, जी टैक्स पेयर बिजनेस करेगा, वो थोड़ी ये सब देखेगा। और कंसल्टेंट ये फटाफट बताता नहीं है। अभी हम लोग डिपार्टमेंट से हैं तो हमको जानू मालूम है कि कहाँ छोटे प्रिंट में गवर्नमेंट ने लिख दिया है ना। टैक्स इनवॉइस बना दिया सब नहीं हुआ, टैक्स इनवॉइस में 16 पैरामीटर्स रहते हैं, वो नहीं डाला। डिलीवरी चालान में 14 पैरामीटर रहते हैं, वो नहीं किया तो आप वायलेट कर रहे हैं कंडीशन। तो इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तो ये तो है सब एक्सपोर्टर के लिए विशेष ध्यान रहे। एक तो मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन का तो रजिस्टर है, उसमें तो जनरल रहेगा। एक रजिस्टर आप ये मेंटेन कीजिए कि एक्सपोर्ट के लिए जब 14 तारीख को मैंने 2000 किलो कुछ बनाया है, उसमें 1000 किलो एक्सपोर्ट है, ये मेन रजिस्टर में 2000 किलो इन्वर्जन ये मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन में आ जाएगा। डिस्पैच में उसी दिन 1500 किलो गया होगा, लेकिन 1000 एक्सपोर्ट के लिए किया। तो ये एक रजिस्टर बनाइए जहां 1000 किलो एक्सपोर्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, और वो मैं प्रोडक्शन से ले लिया और अभी मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। उसका रिलेटेड शिपिंग बिल्स, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, बिकॉज एक्सपोर्टर और आम टैक्स पेयर में बहुत डिफरेंस है। उसको सीएचए का खर्चा होता है, सीएफएस का खर्चा होता है, सब कुछ होता है उसको, ट्रांसपोर्टर ओशन फ्रेट का होता है, ये होता है। तो एक अलग फाइल बनाता है, डॉकेट बनाता है, तो वो डॉकेट अलग से बनाइए, जहां से आप एक्सपोर्ट के बारे में बोलेंगे साहब आपने तो दिखाया 9 में 3 करोड़ का एक्सपोर्ट है, यहाँ तो मेरे को 256 मिल रहा है। नहीं साहब, ये पहले का एक्सपोर्ट है,
जो इस बार हमने दिखाया या अभी का एक्सपोर्ट है जो बाद में दिखा, जो भी रीजंस है वो आप बताएंगे और रिकंसाइल करके देंगे तो दे विल बी सेटिस्फाइड। तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट के लिए ही हैज टू बी वेरी थिन, देन वेदर इफ इट इज गुड्स, वेदर टाइम पे पैसे आ गई। अगर टाइम पे पैसा नहीं आया तो आपने आरबीआई से परमिशन लिया है क्या, थोड़ा और दिन के लिए, तो वो सब यदि परमिशन का लेटर्स है तो ठीक है। और अगर आ गया तो बीआरसी, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, कि भाई मैंने 10,000 का एक इक्विपमेंट भेजा, 10,000 आया या जितना भी आया उसका बीआरसी नंबर एचडीएफसी का है, ये है। तो वो सब आपको विशेष ध्यान है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स, you are the apple of the eye of the government. At the same time, incentives are given to you. तो incentives misuse नहीं होना चाहिए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। उसी का ध्यान ऑडिटर देखेगा कि आपने क्या इंसेंटिव्स लिए, ड्रॉबैक हायर रेट में तो नहीं लिया, अगर हायर रेट में लिया तो आईटीसी कैसे ले लिया, वो सब देखेगा। रिफंड आपने कैपिटल गुड्स का तो नहीं ले लिया, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, बट आपने एक मशीन मंगाई उसका भी क्रेडिट ले लिया, उसका तो आपको मिलने का नहीं है, ऑफिसर भूल गया आपसे, तो वो सब देखेंगे। तो आपको ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। आई एक्सपोर्ट्स के लिए आपने जो पूछा बेस्ट प्रैक्टिस है, इफ यू मेंटेन अ सेपरेट डॉकेट ईयर वाइज फॉर योर एक्सपोर्ट्स, देन इट विल बी वंडरफुल, देयर विल बी नो कॉस्ट फॉर एनीथिंग। पेमेंट्स का मैंने बता दिया, बीआरसी आता है वो सब बता दिया, जो भी है आपके जो बिल्स रिलेटेड हैं उसके, तो वो सब यदि आप अलग से मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इन केस ऑफ ट्रेडर एक्सपोर्ट हु आर कॉल्ड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, उनके ऊपर हम कुछ नहीं, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां से वो लोग सप्लाई लेते हैं कंसेशनल रेट में, वो बंदे को केयरफुल रहना चाहिए और उसकी सहायता आप कर सकते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर 0.1% आईजीएसटी या 0.05 प्लस 0.05 यदि आप महाराष्ट्र में ही लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारे, एक ही नोटिफिकेशन है 41/2017 और आईजीएसटी का शायद 40 है, इसका 41 आईजीएसटी का या वाइस वर्सा, उसमें प्रोसीजर्स लिखा गया है। वो प्रोसीजर्स का वायलेशन यदि आप करते हैं तो आप, ये गुड्स के लिए है, गुड्स का एक्सपोर्ट का कोई चैलेंज नहीं होगा, लेकिन आपको पेनल एक्शन डाल सकता है, आपके सप्लायर को तकलीफ दे सकता। तो उसमें क्या करना है, आप एक परचेज ऑर्डर देंगे आपके सप्लायर को, जो आपको आजकल तो मैं श्योर शॉट हूं कि बहुत लोग बोलते हैं हम 1% का इंटरेस्ट, 0.1% में हम नहीं देना चाहते, फिर भी यदि कोई दे रहा है तो एक परचेज ऑर्डर आप प्लेस करेंगे। वो पीओ का ऑर्डर 2 कॉपी बनाते हैं, एक्सेप्टेड साइन, एक कॉपी तो आपके फाइल में, आपको हम लोग कुछ नहीं पूछेंगे, उसको भेज देना है क्योंकि उसको ऑफिसर के पास जमा करना है, एक कॉपी उसको दे दीजिए। फिर जैसे माल आया तो वो दो, उसमें से 2 कंडीशन है, एक तो डायरेक्ट पोर्ट में जाना चाहिए, इट कैनॉट कम टू योर प्लेस ऑफ बिजनेस, और यदि कोई वेयर हाउस में जाता है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड तो वो वहां का वेयर हाउस का एंट्री चाहिए, तो वेयर हाउस कीपर को बोलो कि भाई उरन में है, जनरली जेएनपीटी है तो उरन में रहता है, तो उसको बोलो यार आपका एंट्री रजिस्टर इस डेट में माल आया और इस डेट में एक्सपोर्ट आया, वो दे दीजिए मेरे को, क्योंकि मेरे को ऑफिसर को सबमिट करना है। सो ज्यादा करके पोर्ट में डायरेक्ट जाता है ये माल, ये अपने पास नहीं आता है, तो वहां चला जाएगा, तो उसका शिपिंग बिल जो भी है और लेट ऑर्डर कस्टम्स देता है, तो उसका भी कॉपी आपको तुरंत भेजना है। सब कुछ ये 90 डेज में एक्सपोर्ट होना है। कंडीशन वो है, ये क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है कि हम वायलेट कर रहे हैं, उसका मैं आंसर नहीं दूंगा। 90 डेज लिखा है तो 90 डेज में आपको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि सरकार अगर 28% टैक्स को 0.1 में देती है तो 27.9% वो खो रही है। इस बात में वो सोच रही है कि आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यदि आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसको 28% मिलता। तो इसीलिए जब भी आप कंसेशनल कोई भी एग्जामिशन लेते हैं या कोई भी रेट लेते हैं तो आपका कान खड़ा होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा सतर्क होने की जरूरत है। तो ये है।
तो इसका रजिस्टर्स भी मेंटेन करना है, मैंने कहां से कहां माल लिया और कौन से शिपिंग बिल में चला गया. सो देन ओनली इट विल बी कंप्लीट. आप ये सब वायलेट करेंगे तो आपको सिर्फ 50 या 1,50,000 ही लगेगा, क्योंकि आप IGST एक्ट वायलेट कर रहे हैं. लेकिन ये जाना आपको, जो आपको सप्लाई किया बेचारा 0.1%, उसको बहुत तकलीफ होने वाला है. इट विल बी डीम्ड एज नॉट एक्सपोर्ट, विच इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट तो लेट ऑर्डर हो गया है, गुड्स है, चला गया है. तो लेकिन उसको बहुत सारे तकलीफ हो जाएगी. इसीलिए एक एक्स्ट्रा कॉशन फॉर एक्सपोर्टर्स. नाउ सेल्वी, आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी. Export of services, DRC should be. सेल्वी में Yes. Sir, there are no questions online. okay, so I will go to some basic mistakes that are committed by taxpayers and which can be revealed during the audit. Auditors easily पकड़ सकते हैं, because you are giving them everything related to your company, firm, proprietary, LLP, जो भी है आप सब कुछ आप उनको दे देते हैं. Everything they know. सपोज आप कुछ प्लास्टिक इलास्टोमर बना रहे हैं, भले वो कॉमर्स ग्रेजुएट रहेगा, उसको समझ जाएगा क्या क्या कैसे बनाते हैं. अगर आप फैक्ट्री ओनर है, अगर आप ट्रेडर है, तो क्या क्या आता है, क्या मार्जिन हो सकता है, वो सब मालूम है. इसीलिए दे आर द बेस्ट वंस. असेसमेंट ऑफिसर भी ज्यादा आपसे मांगता नहीं है, लेकिन ऑडिटर जो कि वो फिजिकली वेरीफाई करता है, विजिलेंस आता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सब कुछ नहीं देखते हैं. उनको इंफॉर्मेशन मिली है कि कल माल निकली थी, उसमें इनवॉइस नहीं बनाया, ईवे बिल नहीं बनाया, उसमें आते हैं, देखते हैं, बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो बोलता केस बन गया. लेकिन ऑडिटर्स पूरा देखते हैं. तो एक तो आपको, अगर लेट अस चेक कि ठीक ठाक मैन्युफैक्चरर है, आपका एक्सपोर्टर भी है और आपका इंपोर्ट्स भी है, ठीक है. तो इन दिस केस we have found that many taxpayers don't understand the place of supply while discharging the tax. Place of supply, देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई तो मालूम है, आपका वैल्यूएशन है. यदि हम, आई एम टॉकिंग ऑफ अनस्क्रूपुलस फेलोज, 10 रुपए में 1 रुपया कैश है, तो जब तक पकड़ में नहीं आता 9 रुपए का तो इनवॉइस है, देयर इज नो प्रॉब्लम. टाइम ऑफ सप्लाई तो क्लियर है, गुड्स जब निकलती है टैक्स आ जाता है और आपको नेक्स्ट 20th में भरना है. सर्विसेज को आपको टाइम है, अगर आप एडवांस लेते हैं तो तुरंत आप सर्विसेज दे दिए तो 1 महीने में, जो भी है टाइम लिमिट्स में आपको करना है, बने इनवॉइस बनाना है और भरना है. सो इन केस ऑफ हायर मैन्युफैक्चरर्स वी हैव फाउंड दैट प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं समझ में आती है. मैंने बार बार ये कार्डिनल प्रिंसिपल समझाया है पहले भी सेशंस में, कि यदि आप फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं तो सभी कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता है, और यदि आप स्पेंड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है. दोनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई करके एक चीज है जो आपको IGST एक्ट में मिलेगा. बहुत सारे डिफॉल्ट जो है, जहां सप्लाई, जहां रेसिपिएंट है इंपोर्ट के बारे में, वहां का टैक्स लगेगा, और जहां सप्लाई वहां का है वो एक्सपोर्ट माना जाएगा. लेकिन थोड़े बहुत चीज ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स का या रोल्स रॉयस का इंजन सबसे बेस्ट है वर्ल्ड, ठीक है, और उसके लिए बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है. आपने सर्वे करके पता किया और आपने कांटेक्ट किया रोल्स रॉयस को कि मैं तो इतना मशीन्स खुद यहाँ से बेचता हूँ और मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, नवरत्न हूँ, जो भी रत्न है, मेरा ये मिनिस्टर के साथ फोटो है, तो आप देंगे क्या? बोलेंगे यस, आई डोंट हैव द टाइम टू हैव ऑफिसर्स देयर, यू सेल इट फॉर मी. कंडीशंस रखेगा, आप 10-4 इंजन तो आपको बेचना है महीने का, और आपको इतना तो बिजनेस करना है. वो जरा बिजनेस करेंगे तो हम आपको 10% कमीशन देंगे. तो अभी सिंस ही डजंट हैव एन एजेंट, since he doesn't have an Indian account, he will give you only in dollars or euros or Swiss francs. ठीक है.
आप खुश हो जाएंगे, अरे यार आया, फॉरेन एक्सचेंज भी आया, मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ कर दिया, कॉमर्स मिनिस्टर में अगला वर्ष में रत्न कुछ लेने जाऊंगा। लेकिन भाई वो एक्सपोर्ट है ही नहीं ना, क्योंकि सर्टन थिंग्स जैसे मशीन है, गुड्स यहाँ आती है। आपका कंडीशन है कि मैं पेमेंट बेचने के बाद ही आपको पेमेंट दूंगा, रियलाइजेशन होने के बाद। वो लोग बोलेगा पहला तू बेच, फिर हम वहां से 3 हफ्ते में बेचते हैं, और फिर तेरे को विद इन द क्वार्टर तेरे को पैसा मिल जाएगा। नाउ वेयर इज इट? द मशीन इज हियर, द मशीन हैज बीन मेड अवेलेबल बाय द सप्लायर टू यू टू शो इट टू द क्लाइंट, either physically or by through brochures. So the place of supply is in India. तो आपको कमीशन में आपको जीएसटी भरना है, आईजीएसटी भरना है। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं था, ये हो गया है और अभी नॉर्म हो गया है। गुजरात का एक जजमेंट आया, उसमें सबको समझ गया, बिकॉज दे सेड कि आईजीएसटी एक्ट का एक प्रोविजन है वो लागू होता ही नहीं है। हम तो कमीशन पे जो भी है वो मशीन पे तो आईजीएसटी भरा हुआ है ना, तो कहां से हमारा हुआ? तो वो प्रोविजन को ही चैलेंज किया जो उड़ गया है। सो उनको कमीशन पे उनको जीएसटी भरना है। ये तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दे दिया मैंने। फॉर आपने एक एग्जांपल नाउ, यूरोपा करके कंपनी है, उसने देखा इमैक्स करके यहाँ एग्जीबिशन, तो वो उनको यहाँ आके करना है, उनका डिस्प्ले करना है, वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हम ही हमारा लाएंगे एग्जीबिशन में, हम ही ले जाएंगे, बेचा तो बेचा, नहीं बेचा तो नहीं बेचा, लेकिन आप मेरे को सब लाइसेंस करो, गवर्नमेंट परमिशन लेके दो, और तंबू जो है एक कियोस्क मेरे को दे दो, इतना है उतना है, उसका हम आपको $50,000 आपको देते हैं। पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आया, लेकिन इवेंट तो यहाँ हुआ ना जी। तो इवेंट यहाँ होना और सर्विस प्रोवाइडर भी यहाँ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया, भले हो फॉरेन एक्सचेंज में आया हो। वेरी गुड, यू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द रिजर्व्स ऑफ इंडिया, इंडिया सल्यूट्स यू फॉर दैट। लेकिन ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होने से उसको जीएसटी भरना है। नाउ रिवर्स, एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में किया आरसीएम। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको भरना है कि आपको ही खुद भरना है। गुड्स होगा तो आपको खुद फिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, और कस्टम ऑफिसर आपसे लेता है। एससी इजेड में दोनों, या तो वो फाइल करता है या तो ये फाइल करता है, जीएसटी भर के आप लेके आते हैं, एंड यू रीइंबर्स इफ द एससी इजेड पेज। और एक्ट में तो लिखा है आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। चलो गुड्स में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि सर्विस हो तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बहुत बड़ी एक दुविधा है। तो सेफ्टी के लिए सब में मत भरा करो। अगर आपने भर दिया उसका ऑब्वियसली आप क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर ऑडिटर पता कर दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन है, तो आपको बोला तो भर दिया, तो मैं क्या करूं, 2 इयर्स में तू लेना है तो ले रिफंड, लेकिन तेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका इंटरेस्ट भी करें, पेनल्टी भी मैं मारूं। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई आपको ध्यान देना है कि फॉर एग्जाम्पल सेम कमीशन एजेंट वहां भी तो हो सकता है। आप यहाँ से केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में, आपको मार्केट मालूम नहीं है, मेल में पढ़ते हैं, एक आदमी बोलता है मैं उगांडा का किंग हूं, मैं आपको सोर्स करके देता हूं और आप मेरे को 10% दे दीजिए। सो ऑब्वियसली यू विल पे हिम इन फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या उसने सर्विस दी? दी। सर्विस कहां दी? वहां दी। सिमिलरली कोई होटल है, कोई फिजिकल कुछ सब्सक्रिप्शन आप उधर कर रहे हैं और उधर ही कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ आप सब्सक्रिप्शन नेट में ले रहे हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सो आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी बहुत केयरफुल लेना है कि क्या इसमें टैक्स लगती है, और यदि मैं भर दिया तो करेक्ट भर दिया था। तो इसका आपका एक इनकम टैक्स में 15 CA कुछ है फॉर्म, उसमें आप सर्विस लिखते हैं ना, तो वो सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई में कहाँ बैठता है आपको देखने का। सपोज OIDAR है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, 99% इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन एक 8 करके सेक्शन उसका है, उसमें आपको देखना है आईजीएसटी एक्ट में कि ये वहां तो नहीं बैठा है, और वहां यदि वहां बैठा तो सर्विस वहां प्रोवाइड हुई, आपको कोई भरने की जरूरत नहीं। आपने एक अपना इसके लिए एक फॉरेन अकाउंट खोला, फॉरेन अकाउंट का सर्विस चार्जेस होता है, तो उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वहां स्पेसिफिक माना गया है
कि बैंक वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां है, भले रेसिपिएंट इंडिया में हो, तो ये इंपोर्ट नहीं हुआ जाने मन, तो ऐसा है। दूसरा हमने देखा है कि आप लोग टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जम्प्टेड सप्लाईज बहुत लोगों का है, बहुत सारा चीज गुड्स के लिए 2/2017 और सर्विसेज के लिए 9/2017 गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्टेड है। तो उसमें हमने देखा है कि 1-to-1 एग्जम्प्टेड में आप रिवर्स करते ही नहीं। आप एक रियल एस्टेट एजेंट है जो ईमानदारी से रियल एस्टेट का 18% आप भर रहे हैं, लेकिन आप लैंड भी बेचते हैं, और यदि लैंड बेचते हैं तो वो जीएसटी के बाहर है, और वो बेचने के लिए आपने एक सब एजेंट को अपॉइंट किया है। भाई तू ढूंढ यार, कोई लैंड अवेलेबल है क्या, और लैंड कस्टमर भी है, दोनों ढूंढ, आधा आधा हम पैसा कर लेंगे मुनाफा में। तो वो आदमी बंदा 20 लाख के ऊपर है तो वो आपको बिल देगा 18% का जीएसटी का। देखिए कैश का मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बिलिंग एंड ऑन द प्रेमाइस ऑन द असम्पशन दैट ऑल ऑफ अस आर ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स। तो यदि आप 18 है तो वो 18 का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आप डायरेक्ट एग्जम्प्टेड सप्लाई, लैंड तो है ही नहीं ना भाई जीएसटी। आप खुद बोमाबोम कर रहे हो कि लैंड पे जीएसटी मत लगाओ, अभी जो एमआईडीसी में बेचता है असाइनमेंट ऑफ राइट्स 18% भर दे, तो उसमें बोमाबोम हो रही है ना। 2-3 जजमेंट आपके फेवर में आया है, करेक्ट है, लॉजिकली यस। तो उसका लेकिन 1-to-1 कैसा क्रेडिट मिलेगा, है ना। दूसरा, कुछ आप मिल्क बेचते हैं, एग्जम्प्टेड है, खाली मिल्क जो आम आप पॉकेट में डाल के जाते हैं, टेट्रा पैक का 5% है। तो यदि आप मिल्क बेचते हैं, उसके लिए गाड़ी से उठाना, रखना, उसको पाउच करना, या पाउचेस में आया तो ट्रे में रखना, और फिर काउंटर में बेचना। आपके पास आदमी नहीं है, आपके पास जगह है, दूध का नॉलेज है, लेकिन जगह नहीं है। आपने एक मैन पावर कंसल्टेंट को अप्लाई किया, वो रोज का 3 आदमी देगा, छुट्टी पे हो लेकिन 3 आदमी रहेंगे, 2 उठाने के लिए एक काउंटर पे, ठीक है ना। वो चार्ज करेगा, यदि 20 लाख हो तो वो उसका 18% आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप मिल्क बेच रहे हो 1-to-1। लेकिन ऐसे कुछ सप्लाईज है जो कॉमन है, जैसे आपका ऑडिट फीस हुआ, आपने बढ़िया सा आपके ऑफिस में 4 एसी लगाए तो उसका एएमसी करोगे, कंप्यूटर का एएमसी करोगे, वो सब है। यदि है तो आपको प्रोपोर्शनल रिवर्सल, आपको रिवर्सल 42 में करना है। आपने एक मशीन रखी है, उस मशीन में दही भी पाउच में डालते हैं और दूध भी पाउच में डालते हैं, तो मशीन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एक फॉर्मूला है, मशीन दोनों के लिए यूज होती है, तो उसका आप क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करते हैं। अगर वो पाउचिंग मशीन खाली दूध के लिए रखते हैं तो आपको टोटल क्रेडिट नहीं मिलेगा, और यदि आप प्रोपोर्शनली यूज करते हैं तो जो प्रोपोर्शनल और फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको। तो ये हमने देखा है कि बहुत लोग नहीं करते हैं। एमएसएमई स्क्रिप्ट्स है वो एक पीरियड तक, उसके बाद तो अभी उसको वैल्यू में नहीं लेने का पूरा है। जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो लोन्स एंड एडवांसेस में, वो भी एक एग्जम्प्टेड सर्विस है, लेकिन उसमें भी नहीं है। तो मैं एक्सक्लूजन्स का नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जहां आपके एग्जम्प्टेड सप्लाईज है, ध्यान रहे 1-to-1 क्रेडिट नहीं लेना है, और यदि कॉमन क्रेडिट है तो उसको आपको रिवर्स करना है, हर महीने में रिवर्स करना है। तो ये हम टैक्स पेयर माने ऑडिटर्स देख रहे हैं, टैक्स पेयर्स बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। फार्मा में ये ज्यादा से ये होता है कि आप सैंपल्स देते हैं, और वो एक्ट में मैंडेटेड है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, कि आप वो डॉक्टर से पैसा नहीं ले सकते। तो यदि ऐसा हो तो सैंपल्स में सरकार ये नहीं बोलती है कि आप टैक्स भरो, सरकार ये बोलती है कि आप आईटीसी रिवर्स करो। तो हमने देखा है कि सैंपल्स में नहीं करते हैं। एक सजेशन है, जहां सैंपल्स को आप चार्ज कर सकते हो, मैंडेटेड बाय एनी एक्ट नहीं हो, तो आप 1 रुपए में निकालिए। भले आपने वो आइटम को 1000 रुपए में लिया है, आप 1 रुपए में आप टैक्स भर के निकाल सकते हो। दिस इज नॉट अ लूप होल, दिस है
आप एक किलो घी लेते हैं तो उसमें च्यवनप्राश मिलता है, च्यवनप्राश लेने के लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगते हैं ना। तो ऐसा सैंपल्स में लेकिन यदि आप सैंपल्स फ्री कर रहे हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। हमने देखा है कि नहीं है। दूसरा, गिफ्ट देते हैं हम एम्प्लॉयज को, 50,000 के नीचे है तो सप्लाई नहीं है। लेकिन यदि आपने आईटीसी लिया हो तो क्या ये नहीं बनता है कि आपको रिवर्स करना है? तो आपको रिवर्स करना है। वो हम देख रहे हैं कि मेडिसिन कोविड के टाइम लोगों ने लिया, तब सीएसआर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज तो हम वो भी नहीं अलाउ करेंगे। तब बहुत मेडिसिन लिए और नेक्सस ऑफ बिजनेस नहीं था, लेकिन क्या बोलते हैं, स्टाफ वेलफेयर था, तो वो लोग ने ले लिए। लेकिन हमने बोला अभी स्टॉक दिख रही है, बोलते साहब हमने तो बचाया हमारे स्टाफ का ये, तो आपने पैसा लिया नहीं लिया तो कहां से आपको आईटीसी मिलेगी? लॉजिकली रॉन्ग, बट व्हाट टू डू, दैट इज द टेक्निकल। अगर मैं इसको छोड़ू, कल छोटा सा कुछ होएगा, बोलेंगे कोविड को दिया मेरे को भी दो। इसीलिए आप देखेंगे, आप ध्यान रखिए, कोविड का बहुत सारा एग्जाम्पशन 5% आया था, 0 नहीं किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ऐसा है। आपने गिफ्ट कुछ दिया। दूसरा, हमने देखा है कि गुड्स रिटर्न ऑफ होते हैं। आपके आईटी एक्ट में कुछ 3 साल के बाद यदि आप कुछ सप्लाई यूज नहीं करते हो तो आपको राइट ऑफ करना है। जैसे आप राइट ऑफ करते हैं, यदि आपने आईटीसी लिया हो तो आपको रिवर्स करना है, क्योंकि नेक्सस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, यदि वो जाता है प्रोडक्शन लाइन में और वहां वेपराइज हुआ, वो हुआ तो कोई प्रॉब्लम। ऐसा ही पड़ा रहा और आपने राइट ऑफ किया तो आपको रिवर्स करना है। तो ये हमने देखा है। दूसरा मैंने बोला, नॉन डिस्प्ले ऑफ जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट अ प्रोमिनेंट प्लेस। ये आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में तो करते हो, लेकिन गोडाउन में, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं करते हो। तो आपको, यदि आपका ऑफिसर पूछता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाजू में 2 गली है, चलिए उधर, और वो देखता है नहीं है, अगर आप कर्टियस है तो बोलेगा देखो मैं ये छोड़ रहा हूँ आपको। अगर आप नॉन कोऑपरेटिव है तो बोलेगा ये पॉइंट ले ले भैया, इस फोटो बोलेगा डाल दे कंप्यूटर में, ये पॉइंट है, और फोटो ले लेते हैं वो लोग। क्योंकि बाद में भी पब्लिक, हमने देखा है एक बार ऐसा ऑडिट किया, उसको बताया, उसका एंथुसियास्टिक वर्कर ने स्टिकर डाल दिया, तो बोला साहब हमने डाला, थोड़ी देर बाद आया वो स्टिकर गिर गया, हमने बोला अभी कहाँ है? तो ये सब एंथुसियास्टिक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स व्हाई यू शुड नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक। तो ऐसा है। नॉट कीपिंग records in an organized manner, इसीलिए मैंने बोला आप फाइल सेपरेट बनाइए, ऑडिट के लिए अलग से बनाइए। आईटीसी आता है, नॉन आईटीसी सप्लाई कुछ आता है, आपके पास आता है ना, आप मार्केट से लेते हैं, वो 20 लाख से 40 लाख गुड्स है तो 40 लाख वाला नहीं हो, वो आपको डिलीवरी चलान और बिल देगा, या सर्विस आपका मशीन को आके रिपेयर किया, 600 लिया, 800 लिया, 1000 लिया, 2000 लिया, लेकिन वो रजिस्टर, तो उसका एक अलग आप बना दीजिए, उसको आप आईटीसी इनवॉइसेस के साथ मिलाइए नहीं। ये यदि आप रजिस्टर बनाते हैं तो ये सब आपको कन्वीनियंट रहता है, भाई आईटीसी कौन से में लिया, ये लीजिए सब, तो उसका ध्यान वो नॉन आईटीसी में जाएगा ही नहीं। कभी कभी हमने देखा है, आई विल गिव यू वेरी नाइस एग्जांपल्स बिकॉज आई हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। हम गए थे तो एक बंदा गमबूट्स बना रहा था, है ना, तो गमबूट्स बना रहा था, तो हमने बोला वेरी गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ये फैक्ट्री का, ये फैक्ट्री का है, वो बंदा मेरा ये फैक्ट्री का जीएसटी साहब ये तो काटते ही है ना, ठीक है ठीक है, जरा आपका इनपुट सर्विस, वो बोला ये भी है सब, ये जो मार्केट से लेते हैं वो भी है। उसमें हमने देखा कि वायर स्ट्रैंड्स का एक इनवॉइस मिला, तो बोला ये काय के लिए है, तो चुप हो गया, ये काय के लिए है, तो बोला साहब नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो आई बिलीव इन गम्बूट्स, यू हैव गॉट अ रीइंफोर्स्ड गम्बूट आल्सो, जिसमें वो वायर लगता है। तो बोला ये कहाँ बेचते हो? मेरा सिस्टर कंसर्न में बेचते हो। तो उसका कितना बिजनेस है? सब वो हमने पर्पसली 30 लाख से रखा है, तो उसका परचेजेस वही तो इधर दिखाते हैं हम लोग, तो उसको हमने रजिस्ट्रेशन लेने को रखा। तो ये एंथुसियाज्म की वजह से, उसको क्या जरूरत थी, क्या मैंने मांगा? मैंने तो नहीं मांगा वो रजिस्टर,
या मैंने तो नहीं मांगा नॉन आईटीसी, मैं मांगूंगा तो अलग बात है भाई, आप मार्केट से भी लेते हो, मेरे को वो भी देखना है ना। तो ये सब एंथुसियास्टिक नहीं रहे तो प्रॉपर मेंटेनेंस। मैंने देखा है जहां भी हम लोग जाते हैं, आजकल इनवॉइस के पीछे ही ईबे बिल का कॉपी छापा रहता है। तो वो ईबे बिल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर में टेक अ चांस, भैया इनवर्ट सप्लाई 10 लाख का है, इसका मेरे को ईबे बिल देखो, तभी आप फंबल नहीं करना चाहिए, सब उसके पीछे ही रहता ना, देन ही विल फॉरगेट, छोटा मोटा वो छोड़ देगा, वो ये सिस्टमैटिक है। अगर उसमें फंबल करते हो तो बोलेगा ठीक है मैं लिस्ट देता हूँ, इंस्पेक्टर बोलेगा भाई एक 50 इनवॉइस दे दे, इसको निकालने बोलाएंगे। कभी मिसप्लेस हो जाता है, वो होता है, सिस्टम से आ जाता है नो डाउट, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने रिवर्स चार्ज में भरा है कि नहीं, उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में माल आया। प्लस बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केसेस में दे आर नॉट एबल टू प्रूव कि ये ट्रांसपोर्ट से आया। आप गुड्स मंगाते हैं, कंडीशन फॉर टेकिंग क्रेडिटेड, आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, गुड्स भी होना चाहिए। खाली इनवॉइस और गुड्स नहीं, और गुड्स है इनवॉइस नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, या मिसमैच नहीं चलेगा। तो इसके लिए भाई साहब ये देखिए, मैंने 50 लाख के गुड्स मंगाए, बायर एंड कंपनी से आया, ये इसका इनवॉइस, ईबे बिल, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, गाड़ी नंबर, टैरिफ। सो एक टेस्ट चेक करेगा तो वो बोलेगा भाई ये ठीक है बंदा, he is keeping. So that is, we have seen that not keeping records in organized manner leads to some sort of points, observations coming. Not accounting of destroyed material or expired stock. बहुत सारे एक्ट्स में मैंडेटेड है कि ये साल के बाद आप ये नहीं यूज कर सकते, स्पेशली मेडिसिन। तो उसके लिए प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। तो हो सकता है कि आपने एक्सपायर्ड स्टॉक निकाला हो, लेकिन आईटीसी हमने एक बड़ा, सबसे बड़ा स्टेंट मैन्युफैक्चरर को हमने पकड़ा इस मामले में कि वो हर साल एक्सपायर्ड स्टॉक, तो स्टेंट्स भी एक्सपायर्ड होते हैं, इक्विपमेंट भी एक्सपायर होते हैं, वो निकालता था। और मेडिकल, आपको मालूम है इस एरिया में मुंबई वेस्ट, तलोजा एक मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो लेके जाती है, टेम्पो बेचती है, और वो चार्ज करती है, तो वो 18% लेती है अपना वो डिस्पोजल का। तो मेरे को वो इनवॉइस मिला, तो हमने पूछा भाई ये स्टेंट मेडिसिन किया, इसका क्या? हाँ, ये निकाल देते हो, अलाउड नहीं है। अच्छा, तो इसका रिवर्स किया? नहीं। करोड़ों में, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, आई विल नॉट नेम, करोड़ों में उनको भरना पड़ा। व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट अकाउंट द डिस्टॉर्ट मटेरियल। और उसमें मैंने 1-to-1 पेनल्टी का भी शो को नोटिस दिया। उन्होंने, उनका डेलॉयट था, बोला साहब हमने तो भर दिया। दिस इज टू बी such a beautiful firm, such a reputed firm, handled by a big four consultancy, and you people have not accounted for, and you are keeping the ITC thinking that the officer will not find. So you have to pay. They have gone in litigation. They have paid the crores of ITC, reverse कर दिया. There is no problem. Expired stock तो हो गया. दूसरा destroyed material, कोई फायर हुआ तो तुरंत आप सर्वेयर को बुलाते हैं, अपना इंश्योरेंस का सर्वेयर क्लेम भी करते हैं, पैसा मिलता है, लेकिन उसका आईटीसी, देखिए आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी का मिलता है जो आप यूज करते हैं, इधर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर कोई नेक्सस नहीं रहा आपका, वो मटेरियल जल ही गया, तो आपको क्यों, आप, दैट इज योर मिसफॉर्चून, और आपको you are adequately insured, you get compensated, you are not adequately insured, आपका लॉस है। आपके मे भी इनकम टैक्स प्रोविजंस में आपको कुछ राहत मिलती होगी इनकम टैक्स में, लेकिन हमारा आईटीसी तो हमको चाहिए। वी हैव गॉट इट इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्मॉल, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे मिले, whether it is intentional or unintentional। छोटे कंपनी में आई कैन डेफिनेटली से इट इज unintentional, बट बड़ी कंपनीज में availing ITC of apportioned and or block credits, जो मैंने बोला, जो रूल 42, मैंने लैंड का एग्जांपल दिया, मैंने देखा था कि इंटेंशनली अवेल करते हैं, दे से कि जब आएगी करके, तो डोंट डू दैट। उसमें मिस्टेक्स हमको मिलते हैं, जो आपको मिलता नहीं है। आपको मालूम है सेक्शन 16 गवर्न करता है कि कैसे आपको लेना है, कब आप ले सकते हो, और 17 में लिखता है कि क्या आप नहीं ले सकते।
तो वो आप डेफिनेटली ये दो सेक्शंस बार बार रट के पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप ये मिस्टेक्स हम फाइंड करते हैं। दूसरा, जॉब वर्क में बेस तो देते हैं, जॉब वर्क से आता भी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन एक ITC4 जैसा छोटा रिटर्न है वो फाइल नहीं करते, और उसके लिए 4-4 लाख 5-5 लाख का पेनल्टी द फैक्ट्रीज हैव पेड। सो ITC4 जो भी रिटर्न्स है, GSTR1 हो 3B हो, ITC2B के हिसाब से लेना है, और जो टैक्स डिडक्टर है उसका 7 है, IT इनपुट सर्विस GSTR6 है। तो ये सब रिटर्न्स आपको कॉम्प्लायंस के लिए भरना है। तो हमने देखा है कि बाकी सब तो रिटर्न्स आपको आगे जाने नहीं देता, इसीलिए आप लोग भरते हैं, लेकिन ITC4 ऐसा कोई नहीं है कि आपको आगे नहीं जाने देता है, इसीलिए आप नहीं भर रहे हैं। तो इसीलिए आप भर दीजिए। इट्स अ स्मॉल, आपको भी इट इज लाइक अ रजिस्टर कि क्या माल गया, क्या बन के आया, क्या पड़ा है मेरे जॉब वर्कर A एंड कंपनी, B एंड कंपनी, C एंड कंपनी के पास, क्योंकि जॉब वर्क के लिए भी टाइम है। अगर गुड्स है तो 1 बरस में वापस से जाना चाहिए, नहीं तो जिस दिन गया उधर से हम टैक्स मांगेंगे। कैपिटल गुड्स है तो 3 इयर्स है। आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई बिल्डिंग का, होटल का चमककार है सरामिक टाइल्स को, तो आपको बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी, यू आर अलाउड टू टेक इट। क्रेडिट ले लो, 3 बरस तक वापस रखो, और दूसरा प्लॉट में जाने के पहले लेके आओ और वापस लेके जाओ। यदि आप नहीं करते हो तो उस दिन से हम डेट, इट इज एज इफ यू हैव सप्लाइड। रूल्स हम बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपको केयरफुली जॉब वर्क में ये सब देखना है। दूसरा, इसमें जॉब वर्क में जिग्स पिक्चर्स वगैरह आए नहीं तो भी, टूल्स डाइस वगैरह आया नहीं तो भी नो प्रॉब्लम, वो आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा और आपको उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इवन दो दे आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दैट। टूल्स डाइस का अलग ही ये किया है, बिकॉज वो खपता है उसमें, है ना। दूसरा, हमने देखा है कि नॉन अडियरेंस ऑफ टाइम लिमिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 16(4). 16 में मैंने बोला आपको क्या, किस किस सिचुएशन में आप क्रेडिट ले सकते हैं, और आपको चांस है, देयर आर मेनी मोर चांसेस कि मेनी चांसेस कि आप अपने सप्लायर से यू आर नॉट हैप्पी कि उसने एक मटेरियल दिया, आपने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन एक कॉस्ट में ही लूंगा, नहीं जमता, वो उसका चल रहा है। आप बोल रहे हैं मैं ITC नहीं, क्योंकि मैं अगर कम दाम में होता तो मेरे को ITC रिवर्स करना है कि नहीं। लेकिन उसका एक टाइम लिमिट, जो भी आपको सुलझाना है अगले बरस के 30 नवंबर तक सुलझाओ, और वो रिटर्न में आप ले लो क्रेडिट। यदि आप नहीं लेते हैं तो 16(4) चला जाता है। हमने करोड़ों का रिकवरी भी किया है और करोड़ों का नोटिस भी दिया है, फिर गवर्नमेंट एक दिन सोचती है, फोरम्स बहुत ही एक ही कि एक दिन के टाइम लिमिट में आपने डिनाई किया, तो एक एमनेस्टी स्कीम लाया है। तो एमनेस्टी स्कीम में क्लियर कट लिखा है, जो भर दिया उसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऑडिट के टाइम में आप भर देंगे, इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल। और ये टाइम लिमिट जो है सेक्शन 16(4) का, बिकॉज आई हैव रिपीटेड सेड कि यदि आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में टैक्स नहीं भरते हैं, इंटेंशनल और इंटेंशनल, गवर्नमेंट सोचती है कि वो टैक्स आई ही नहीं, अगर मैं पकड़ता हूं तो आई, अगर निकल गया तो नहीं है। 8-10 रुपए का माल है, आप 8 में दे दिए, बिल में 2 रुपया कैश में हो तो 2 रुपए का आया ही नहीं, उसको 8 रुपए का टैक्स है। लेकिन वो 8 रुपया मटेरियल के लिए आपने 6 रुपये में इनपुट लिया, उसका टैक्स जो भरा है वो तो गवर्नमेंट को आ गया ना। अगर उसका आप चोरी करते हैं या मिस्टेक में करते हैं तो गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। इनिशियली 24% इंटरेस्ट था, अभी 18 अलाइन कर दिया फॉर आउटवर्ड टैक्सेबल, जो रेट है उसी में ऑर्डर किया। सो दैट वाज द रीजनिंग कि ITC जो मेरी जेब में आ चुकी है, सरकार की जेब में आ सकती है, अगर ये लोग मिसयूज कर रहे हैं तो उसका ज्यादा पेनल्टी होना चाहिए। तो ये टाइम लिमिट 16(4) का अध्ययन नहीं होता है, तो ये हमने देखा है। तो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव नोटिस्ड, वी हैव मेड फैंटास्टिक केसेस। इंटरेस्टिंग केसेस तो अलग है, वो हम नहीं बताएंगे, वो तो जनरली इंटेंशनल एरर्स का है। और ईवे बिल में भी मैंने देखा हूं कि वेरी कैजुअल एटीट्यूड है ईवे बिल का, या समझ कम है। लोग बोलते हैं कि 50 किलोमीटर के लिए ईवे बिल नहीं है,
या 20 किलोमीटर के लिए है, ऐसा नहीं है। 20 किलोमीटर के लिए इसीलिए है, यदि आपका गुड्स है और आपके पास वेमेंट स्केल नहीं है, जैसे स्क्रैप हुआ, तो आप 20 किलोमीटर में यदि आपका वेइंग स्केल प्राइवेट वाला या गवर्नमेंट वाला है, तो आप एक डिलीवरी चालान में आप बेच सकते हैं, उसमें कोई इनवॉइस की जरूरत नहीं है और ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। 50 किलोमीटर इसके लिए बोल रहे हैं कि यदि आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कौन सा गाड़ी में अल्टीमेटली जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट आरएस एंड कंपनी मस्जिद में है, वो करेगा, तो आप पार्ट ए दे देंगे उसको, उसमें गाड़ी नंबर नहीं रहेगा, पार्ट ए के साथ गाड़ी जाएगी, पकड़ी भी जाएगी तो बोलेगा सब ट्रांसपोर्टर करेगा। तो वो 51 किलोमीटर रहा तो आपको नहीं मिलेगी वो सुविधा। 50 किलोमीटर यहाँ से मस्जिद जाता है या आपका उरन में है, तो दैट इज वेयर ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा है लास्ट पॉइंट, आपके ट्रांसपोर्टर के पास आया, वो बोलता है सब आप ही को बनाना है, एक ही गाड़ी आसाम जाती है, 9 टन की माल जाती है, आप ही बना रहे हैं, और उधर से 4 छोटे गाड़ी में वो डाल के फैक्ट्री को देता है। यदि वो 50 किलोमीटर के दायरे में, तो वो ई-वे बिल चल जाएगा, उसको अलग ई-वे बिल बनाने की जरूरत। तो यही सिचुएशन है। और दूसरा, जो एग्जम्प्टेड गुड्स है, जो बिल ऑफ सप्लाई में जाती है, उसके लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल सप्लाईज में गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा भी अगर स्कूटर में गया तो बनाना पड़ेगा, इसीलिए उनको छूट दी गई है। अगर सिलेंडर्स जाती हैं फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग एंड रिफिलिंग और कलेक्शन, फिर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर सिलेंडर में गैस है तो भरने की जरूरत है। सो ऐसे एग्जाम्पशंस हैं, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नॉर्मली आप वैल्यू भी मत दीजिए, आपका इंटेंशन क्लियर है तो सबके लिए आप ई-वे बिल बना दीजिए। तो ये मिस्टेक्स हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफिसर अगर रीजनेबल नहीं हो, तो वो बाकी शो कॉज पीरियड ही विल से फॉर अ पीरियड, वो हर ई-वे बिल नहीं बनाने का 10 + 10 हजार लगा देगा। बोलेगा नहीं, मैं अलग अलग लूंगा आपसे, लॉजिकली टिकेगा नहीं, लेकिन उसको जो करना है वो ऐसा कर सकता है। इसीलिए ई-वे बिल पे ध्यान दीजिए। बाकी तो मैंने पॉइंट्स ये कर दिया है, और यदि कोई क्वेश्चंस बाद में भी हो तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। एंड आई थिंक we are 17 minutes early, but see, when the topics are limited for a particular, the act is wide, the rules are very wide, the allied acts are big, but when I take a small chapter, there is bound to be either it could exceed the limit, but sometimes limit है और questions नहीं आती है, तो there are only two things. अगर क्वेश्चंस नहीं आती है, इसका ये मतलब है कि आप लोग ने जीएसटी एक्ट और रूल्स को पूरी तरह से भांप लिया है। बहुत बढ़िया, इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा है। या आप लोग को खुद समझ में नहीं आया और जैसा सिचुएशन होगा तब देखा जाएगा। तो आम इंडियन सोचता है कि मैं ट्रेन में चढ़ जाऊं, टिकट लेने भूल गया, देखता हूँ, और यदि टीसी आता है तो देखता हूँ। टीसी आता है तो मैं बोलूंगा तू टिकट चेक कर रहा है कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर है? तू अगर टिकट चेक कर रहा है तो तू प्लेटफॉर्म में देख सकता है, मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर ट्रेन टिकट एग्जामिनर आपको प्लेटफॉर्म में पूछ सकता है, आप बोलेंगे आप ट्रेन टिकट एग्जामिनर है, आप टिकट चेक करनी है, नहीं दे सकता हूँ। हवलदार आपका क्राइम वाला आपको रोक नहीं सकता रोड में, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो आपको ट्रैफिक चलान नहीं कर सकता है, और ट्रैफिक चलान आपको ये नहीं पूछ सकता कि ये क्या गोल्ड लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, ये कैन नॉट क्वेश्चन। तो ऐसे हैं, इसीलिए we have to be, we are very happy कि हम सोचते हैं कि सभी टैक्स पेयर्स सब कुछ जानते हैं। That is why I repeatedly say that the GST Act is a beautiful act made for the trade, for the purpose of ease of business. इन शब्दों के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, Anand ji. It was a really nice topic और आपने जो बड़ी आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन दिया ये सब का, तो आई एम श्योर यहाँ के जो ऑडियंस है और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, दे हैव बीन बेनिफिटेड बाय योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज।
एंड ऐसे ही श्रृंखला में और भी आगे हमें आपसे क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये हम वी आर वेटिंग फॉर some more topics to come from you. Thank you.